Okay, Assalamu alaikum everybody. Thank you so much for waiting patiently. I know some of us are joining. वो थोड़ा सा हमने break लिया था. तो I think we'll start. और जो दूसरे हमारे साथी हैं वो inshallah will join us. Today's session, unfortunately, Madam Maria is not able to join us. पर हमने सोचा कि इसको फिर because वहाँ पे आप सबको पता होगा इस्लामाबाद में जो situation है, and Madam Maria is actually posted there. तो जो obviously मुल्क की हालात जो है काफ़ी controversial चल रहा है. So she had some emergency duties, but not to worry because today's session I will handle and take over. And in fact, it's a very good topic area that I hold quite dearly. And hopefully, I will do justice to it, and hopefully, Maria can then say that yes, you have. So because it's an area that's related to training that I do anyways. क्योंकि मैं mediation and arbitration की training वैसे ही करता हूँ, and also communication skills की. So it's kind of in that category and stuff. So hopefully that's going to be helpful for us. So let me go ahead and do the slideshow here. But I hope everybody has finished the activities that was assigned for the purpose of our session. And I hope that, yeah, you can see it now? Sorry, my computer's a little slow. I'm at my workstation. Furkan, aa raha hai, screen में आ रहा है? Yes, I can see the screen. It is there. Okay, good. Okay. So peer networking. अच्छा, peer networking आज का जो topic है आज के session का, I hold very dear because एक तो ये मैं emphasize नहीं कर सकता इसकी importance when it comes to developing particularly skills of leadership, of recognition. Peer networking, I'm pretty sure, I mean, let me open the floor up. Immediately when we hear this word peer networking, आपके ज़हन में क्या चल रहा है इसके बारे में? Like what goes through your mind when we talk about peer networking? What does it mean to you? Anybody? Any participant would like to kind of comment के peer networking जब हम कहते हैं तो peer networking के आपके ज़हन में क्या 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 मतलब what do you get from it? Definitionally अब मैं बात कर रहा हूँ, I'm pretty sure आपने ये term तो सुना होगा. तो जी सर। जी ये पीड नेटवर्किंग जो है वो इस तरह से जिस तरह से कलीग्स हैं या सेम जो स्ट्रेचर के आपके जो कलीग्स वगैरह हैं उनकी जो एसोसिएशन है या नेटवर्किंग है उनसे मिलना जुलना एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, एक सोशल गैदरिंग आप कर लें कि सेम उसके आपके जो कलीग्स हैं तो उसको पीड नेटवर्किंग कहा जाता है। जी बिल्कुल, नवीद अहमद साहब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आपके अपने जो साथी हैं इसी रोल में जो आपके साथ ही काम कर रहे हैं इन द सेम वे. सो इफ यूर अ जेएम, अ जेएम ऑफ वन साउथ में है तो ईस्ट में भी वही कोई बैठा हुआ है उसी सेम एरिया में, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस. अच्छा, पीयर के अंदर जो जो खास चीज़ है ना वो हमारी पीयर नहीं है, उर्दू में जो पीयर कहते हैं, peer में वो जो है it's a shared experience, it's a peer experience, and to network with those same people who have the same experience और जो वही मुश्किलात आप गुजरते हैं वो वही उसमें से गुजरते हैं. And your networking is obviously the connectivity between you and between your ideas. And of course, in this scenario, there's a lot of sharing and building. Okay? Networking is the idea of building and nurturing of personal and professional relations to create a system and chain of information, contacts, and support. और मैं emphasize नहीं कर सकता कि even in general अगर हम बात करें जो networking की importance है, and please pay a note of this, if you are not networking, you are not working. If you are not networking, you are not working. और हकीकत बात यही है कि आप लोग भी शायद अपने एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में. whenever you join the judiciary, लॉ में आपने प्रैक्टिस किया होगा before you maybe got in, और जो भी जिस फील्ड में थे, और बिजनेस भी अगर आपने किया था पहले. all of the things have to do with some sort of network. जिसका नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा चीज़ें आसानी होती हैं और उतना ही ज़्यादा सक्सेस होता है. क्यों? इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह बहुत सिंपल है. जहाँ पे आप अपने पीयर्स और इक्वल्स के साथ आपकी इंटरेक्शन रहेगी तो उनके जो सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम के सिनेरियोज भी हैं वो भी आपके सामने आएंगे. जो सॉल्यूशंस होंगे
वो ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदे के पास 4 लोग हैं राब्ते में और दूसरे बंदे के पास एक बंदा है राब्ते में, तो 4 बंदों के पास 3, 2, 4, 1 सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर 10 सॉल्यूशन बनेंगे। एक बंदा जो आपके साथ है, जो दूसरी एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, दैट पर्सन विल ओनली हैव वन कॉन्टैक्ट टू आस्क, एंड दैट वन कॉन्टैक्ट शायद जवाब दे ना दे, शायद उसके पास 10 सॉल्यूशन भी हो, शायद उसके पास 0 हो, शायद उसके पास 2 हो, लेकिन एक बंदे के साथ तो आपको एक ही रिजल्ट आएगा, जितना भी आएगा। When you have a wide variety of contacts and network, अब आपके पास 4 सॉल्यूशंस एक्स बंदे से आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस एक बंदे से आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन एक बंदे से आ रहा है, और बाकी भी अगर फारिग है आपके फिर भी 7 सॉल्यूशन निकले। मतलब जितना आपका वाइडर नेटवर्क होगा उतने वाइडर सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। What I mean by solutions, I don't mean solutions just of ये मुझे कोई काम निकालना है। No, solutions through thought and ideas. Solution through thoughts and ideas are extremely important, particularly in a shared experience. आपका जुडिशल मैजिस्ट्रेट का जो एक्सपीरियंस है, आप जो गुजरे हैं, वो आप किसी के साथ शेयर करने के लिए आपको उनको फ़ायदा होता है कि भाई मैं भी कुछ इसी चीज़ से गुजर सकता हूँ। सो व्हेन यू हैव दैट पीयर नेटवर्किंग, देखिए आप जो भी यहाँ पे कोर्ट्स होते हैं, मैं तो हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आपके जो बराबर वाले कोर्ट है, दोनों तरफ दाएं बाएं में, उनके साथ उन जजेस के साथ आपका रब्ता होना चाहिए। बिकॉज वो तो बहुत आसान से उनके चेम्बर्स भी जस्ट पीछे से जाके आप कर सकते हैं, मशवरा होते हैं, एक इंटरेक्शन, चाय के वक्फे के टाइम पीरियड में कभी साथ बैठ लें, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा जो आपके फ्यूचर के लिए भी फायदा होगा, प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट, बट ऑल्सो इट विल गिव यू द शेयर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, शेयर्ड प्रॉब्लम से शेयर्ड सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो एक आपका वैसे ही जब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली अपने साथियों के साथ, तो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके डिसीजन मेकिंग में और जो है क्लैरिटी आती है, बेहतरी आती है। हम क्यों मैं अगर आपसे एक लीगल लैंग्वेज में आपसे कहूँ एज ए लॉयर, हम प्रेसिडेंट केसेस को क्यों अहमियत देते हैं, क्यों वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो भी तो हमारे एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है ना हमारे पीयर्स के। बेशक वो हमारे सीनियर्स थे, शायद हाई कोर्ट में हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट के हैं, बट उनकी जो रीजनिंग है, रेशियो डिसाइडरी है, दैट मेक्स अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम केस इन अ वे जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसको आसानी से अकॉम्प्लिश करना। सो नेटवर्किंग is extremely important, especially amongst your peers who have a shared experience. This is, you know, again the sharing of information, जहाँ पे एक तरफ तो आप गेन भी कर रहे हैं और दूसरा आप किसी और की मदद भी कर सकते हैं उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस से शेयर करते हुए, तो प्रॉब्लम्स के साथ अपना ओपन अप भी हो और उसके साथ साथ जो सॉल्यूशंस भी हैं वो भी आएंगे सामने। एंड सो दैट्स व्हाई द नेटवर्किंग particularly amongst your peers is important, और peer की जो स्पेस है ना वो भी बहुत अहम है। When you talk about peer networking, it talks about the idea कि जहाँ पे एक दूसरे जो साथ होते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंस में, they're more open to share, राइट। एक होता है ना कि तो चलो ये बंदा बाहर का है, इसको क्या पता है हम क्या गुजर रहे हैं क्या नहीं गुजर रहे, तो वो इतना आप खुद रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, खुद उस बंदे को शायद समझ में भी नहीं आए। तो इसके अंदर जो कंफर्टेबिलिटी है, जो एनवायरनमेंट पैदा होता है, वो पीयर नेटवर्किंग में देयर इज नथिंग लाइक इट। इसका कोई कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स वन थिंग टू हैव यू नो अ लेवल ऑफ सीनियोरिटी का भी एक होता है, जैसे आप टीचर के पास जाते हैं, टीचर आपको सिखा रहा होता है, तो एक वो एनवायरनमेंट पैदा होता है कि देखिए टीचर टीचर है और मैं जो हूँ स्टूडेंट हूँ, तो कुछ चीज़ें वो लिहाज का भी होता है, देयर सम थिंग्स यू कैंट आस्क, यू आस्क, whereas peer के अंदर you feel like equals, right? वो एक environment इस तरह से होता है कि equality का aspect है। So you know, it's in order for this successful networking to happen, please understand this, ठीक है, कि आपको इसके अंदर भी इस मामले में कुछ डालना है, ठीक है। तो obviously you have a shared unique experience जो किसी और को भी बेनिफिट दे सकता है अगर आप शेयर करें। तो एटीट्यूड शुड बी म्यूचुअल बेनिफिट इस नेटवर्किंग का हो। जहाँ पे आपका कोई जैसे कोई भी आप रिलेशनशिप देख लें ना, फॉर एग्जांपल अगर मियाँ बीवी का ले लें, कोई दोस्तों का ले लें, जहाँ पे एक दोस्त के एक मियाँ स्पाउस जो है दूसरे पे बिल्कुल एक लीच की तरह रहता है एंड खींचता रहता है उसमें से, तो ऑब्वियसली जो सारी एनर्जी है, सारा जो एलिमेंट है, वो एक की तरफ आ रहा है एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस नहीं रहता।
तो जहाँ पे ये होता है तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। तो पीयर नेटवर्किंग में भी इस तरीके से कि आपके पीयर के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए, दैट्स ग्रेट, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर भी उस रिलेशनशिप में आप भी एक हिस्सा डालें एंड शेयर योर ओन सॉल्यूशंस एज वेल अलॉन्ग विद दैट। तो इसके अंदर सक्सेसफुल आपकी एक रिलेशनशिप रहती है। तो लेट मी ओपन द फ्लोर अ लिटिल बिट। मैं वैसे आप लोगों से सब पूछ सकता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली जो बराबर में आपके जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट रूम्स होते हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है। आई जस्ट नीड अ शो ऑफ हैंड्स। जो उन लोगों ने है तो मतलब then Furqan can identify and we can have a little discussion. How many of you actually meet with your fellow judges, even the ones next to you? So let's just start with that. बहुत basic सवाल है कि जो कोर्ट रूम है आपका, जहाँ पे आपके असाइनमेंट है, आप बराबर में दाएं बाएं में आप उनको जानते कि नहीं? सादिया प्लीज। सर हैंड रेस करने को कहा था, हैंड रेस किया है। जी आई यूज्ड टू मीट विद माय पीयर्स और मैं अपने दाएं बाएं आती जाती रहती हूँ। तो सादिया लेट मी आस्क यू साहिबा एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जो इनके साथ मिलने जुलने का रिएक्शन है, इज इट जस्ट बियॉन्ड सलाम दुआ? इज इट अबाउट सिटिंग टुगेदर चाय के वक्त में कोई प्रॉब्लम्स डिस्कस करना और उससे कोई सॉल्यूशंस आपको मिले? अगर कोई एक स्टोरी आपको याद है एक एक्सपीरियंस के जरिए, पीयर्स के जरिए, प्लीज शेयर विद अस। स्टोरी लास्ट क्लास में अगर सुनाई थी तो आई वाज नॉट इन लास्ट क्लास। हाँ, मगर आपने पूछा कि मेरा आना जाना सलाम दुआ से ऑफ कोर्स ज़्यादा है। एक्चुअली हम तो फ्रेंड्स ही हैं और हर चीज़ डिस्कस होती है, उसमें लाइफ प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं एक्सपीरियंस को। काम का तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वो तो एक ही चीज़ है, हम लोग उसमें तो बहुत आसानी से एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक दूसरे को मशवरा देते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर स्टोरी याद है जिसके अंदर आपने अगर किसी को मशवरा एडवाइस दिया अपने पीयर को जो उनको बहुत फायदे में आया और प्लस अगर आपको कुछ मिला? जस्ट अ स्टोरी इफ यू हैव एनी रेफरेंस। राइट नाउ तो मुझे कोई एक ऐसा वाकया तो नहीं, हाँ मगर नंबर ऑफ ओकेशन ऐसा हुआ है कि एक दूसरे को हम लोगों ने हेल्प किया। मैडम मारूफ की बात करी मैं, चूंकि मैं नेक्स्ट वही होती थी तो ज़्यादा हम लोग ही आसपास रहे थे। आजकल उनका कोर्ट मुझसे कुछ दूर है। तो नंबर ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग किसी ऐसी जगह फंस गए, खासतौर पे फंसते हैं तब है जब पूरा बार इकट्ठा आ जाए बास केसेस में। तो नंबर ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि ऐसे था, फिर ये था कि इंस्टेंटली रिमांड है, अब उसमें कोई डिसीजन लेना है तो क्या करना है। तो फौरन से हम जो है ना अपने चैम्बर में के हम ऑर्डर अभी अनाउंस कर रहे हैं कि वकीलों को भेजते हैं और फिर एक दूसरे के, हमारे चैम्बर भी कनेक्टेड थे, तो एक दूसरे से फौरन फाइल शेयर करेंगे कि यार अब इसमें करना है, क्या करना है। फिर ये मशवरे के साथ एक ऑर्डर करके बाहर निकाल देते थे। तो नंबर ऑफ टाइम ऐसा हुआ है, खासतौर पर रिमांड में और अर्जेंट बेल हो उसमें, और इस किस्म की सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल होता था एक दूसरे की मौजूदगी से। See, that's a very good. Thank you for that share, Madam Sadia, because that's exactly what I was trying to emphasize. It जब shared एक वो experience हो जाता है, particularly peer networking, जैसे आपने अपने example में बताया, वो shared burden भी एक लिहाज से हो जाती है। तो आपको कभी एक बड़ा सा एक वो केस लग रहा है, सारा बार आ गया and और पूरा चल रहा है वहाँ पे उस केस के अंदर, and I know that scenarios happen, and in this you have a foundational element with your network that allows them to be able to kind of balance this and take that challenge on, which makes it easier for what JM जो भी है or session judge है to handle the situation, because they know they have the support from their peers and they have मशवरा देते हुए वो एक फैसला जो है उसकी तरफ जाए। Thank you so much Sadia for that. Anyone else would like to share कोई experience रहा है अपने peers के साथ जो आप कह सकते हैं बड़ा एक अच्छा example रहा है? We have Miss Faima Noshin साहिबा, please. जी अस्सलाम वालेकुम माज। साहब मेरा एक एक्सपीरियंस ये था जब मैं शुरू में जैसे अब न्यूली इंडक्टेड थी, न्यूली अपॉइंटेड, तो उसके बाद अक्सर ऐसा होता था कोई नई टर्न या कोई नई सिचुएशन आती थी तो फिर हम अपने जो दूसरे मैजिस्ट्रेट साहिबान हुआ करते थे जो कि हमसे कुछ अरसा सीनियर हों या इनफैक्ट हमारी पोस्ट पे, तो उन्हें हम अक्सर कॉल करते थे, उनके पास जाकर कभी पूछते थे। सच एज मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे पास फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन परेड आई थी, तो जाहिर है वो जो पढ़ा हुआ होता है उसकी निस्बत प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी जाहिर है हमें गो थ्रू करना था। तो फिर उनसे बात की, एक हमारे मैजिस्ट्रेट साहब थे, उनसे बात की तो उन्होंने फिर हमें बताया कि मुझे बताया कि आप इस तरह से इसको डील करेंगी, इस तरह से आप इसका जो है वो फॉर्मेट बनाएंगी। खैर वो मेरा एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद ऐसा भी अक्सर होता था जो मेरे अराउंड की जजेस साहिबान होती थी, अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वो मेरे पास जैसे फटाफट से कॉल की कि आप मौजूद है चैम्बर में? जी मैं चैम्बर में हूँ। अच्छा जी, आ गए, फिर बैठे, उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, जो भी, भले वो सिविल हो, फैमिली हो,
या क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से भी फिर बैठ के डिस्कस करते थे, उनको भी डेफिनेटली बेनिफिट हुआ करता था, हमें भी होता था। तो ये हमारा जो है वो मतलब हमारी प्रैक्टिस भी इसी तरह थी। शुरू-शुरू में ज़्यादा होता था, अब ग्रेजुअली जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन ये कि हम पूछा करते थे एक-दूसरे से और बड़ा बेनिफिट होता था। अच्छा, नॉट ओनली दिस, कभी बैठे हैं जैसे अक्सर ब्रेक टाइम होता था, बैठे हैं चाय के लिए या कुछ ऐसा है, एक-दूसरे से गपशप करते हुए कोई ना कोई पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस हो गया, कोई लिमिटेशन का पॉइंट डिस्कस हो गया, कोई ऐसी चीज़ें जो कि सब्सिक्वेंटली हम सबको कहीं न कहीं बेनिफिट दे रही होती थी। नाइदर के नॉट ओनली दिस कि मुझे पूछा जाए कि उनके बेनिफिट के लिए, बल्कि वही चीज़ मेरे भी बेनिफिशियल मेरे लिए भी वो बेनिफिशियल हुआ करती थी। तो हम इस तरह से जो है वो मतलब इन चीज़ों को कवर अप किया करते थे इनिशियली। फिर अब भी कहीं-कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है, अदरवाइज़ इनिशियली तो ऐसा सब हुआ करता था। हाँ, वेरी गुड। तो आई थिंक आपने जो जो शुरू वाले जो बात की ना, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्टिकुलरली जब आप नए एक उसमें आते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, यू बिकम न्यू मैजिस्ट्रेट, ऑफ कोर्स ये नई चीज़ है, अ लॉट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस। इनफैक्ट अगर हम सब थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें ना, एनी कोई नया इदारा के जब हम ज्वाइन करते हैं, इधर जॉब पोस्टिंग है, इवन स्कूल, अगर आपको याद है कि नए नए जब हम स्कूल में भी गए थे, तो वहाँ पे भी जो शुरू वाले दिन होते हैं ना, बड़े एक्साइटिंग होते हैं, जिसके अंदर ये लर्निंग्स होती है, बिकॉज वी आर मोर ओपन टू दैट इंटरेक्शन। फिर बाद में थोड़ा सा एक ग्रुपिंग हो जाती है, फिर इस तरीके से फिर वो मिठास नहीं रहती जो आपने अभी जो, जैसे आई कुड सेंस द एक्साइटमेंट मैडम, when you were talking about this कि क्या अच्छे टाइम थे कि जब मैं नए आई थी, and you learned a lot from that, particularly you brought up a very important point कि जो सीनियर्स जो आपके थे पहले, जो इसी पोस्ट में थे, वो जो निकले, and you know how they handled the situations, और मे बी जो केसेस जो कैरी ऑन हो रहे हैं, ऑब्वियसली जो आप टेक ओवर कर रही हैं, डेफिनेटली वहाँ पे तो इंटरेक्शन रहा होगा। तो इसके अंदर दैट्स एन एलिमेंट एज वेल, बिकॉज देयर इन अ सेंस दैट्स पीयर एज वेल। बट ये बहुत मज़ेदार आपने शेयर किया हमारे साथ, और पर्टिकुलरली आपने कहा था जो एक वक्फा होता था जिसके अंदर चाय के वक्त में जब मुलाकात भी होती थी, तो कभी अगर दो लोग के दो कोर्ट्स में कोई एक चीज़ चल रहा है और वन जज, वो फिर आप सुनते हुए एक आपका भी बेनिफिट उसमें आ जाता था, दैट मे बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन, and knowledge increase obviously. And I think that's the most important point right here, and you've really kind of summed it up very nicely. And I hope madam कि आप किसी तरीके से इसको रिवाइव वापस करें, आप कहीं चले मेरे चैम्बर में हो जाए चाय, और आप ज़रा ये बहुत ही एक अच्छा एक प्रैक्टिस है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें सब पता है कि यू नो देयर इज़ अ चाय का वक्फा, एंड इट्स वेरी गुड टू हैव दैट चाय का वक्फा विद फेलो पीयर्स, एंड दिस इज़ अ रियली ग्रेट टाइम जहाँ पे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन भी हो सकता है। वैसे ही वो एक जब स्केड्यूल में है, दैट्स समथिंग, आई नो रमज़ान में तो नहीं है अभी इस वक्त, but eventually when it does come, this is a very good practice. Thank you so much for that share. The effective networking usually occurs between two or more people who build a rapport. So Madam Faima ka जो example था, that basically was based on कि दो से ज़्यादा भी हो सकता है, it's not that. And like I said, if you haven't started this type of networking, तो मैं तो encourage करूँगा कि दाएं बाएं जो भी आपके जो कोर्ट हैं, इस हद तक भी आपका अगर इंटरेक्शन है तो कहीं से आप स्टार्ट करें, बराबर वाले कोर्ट रूम से जो भी मैजिस्ट्रेट है, दैट विल बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, because and like I said, and particularly utilizing the things, देखें जहाँ पे आपको एक विल और डिज़ायर हो एक चीज़ पे इफेक्टिवली उसके ऊपर काम करें, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप जो आसानी से आपके साथ जो इदारों में है वो हो सकता है। तो with that said, I think what's important is that we have to realize that the closest effective methodology is that we can use the tools that are available. तो जो चाय का वक्फा है, for example, आपके जो बराबर जो court justices हैं वो हैं, so these are things that we can utilize. I think just give me 1 second here. Same. So when we talked about these aspects, objectives of a network, right? Um, shared goals, right? I'm pretty sure जहाँ आपके peers के साथ हैं, peers के भी shared goals हैं, case load को जो है reduce करवाना, have successful conclusion to these cases. The common challenges, जैसे हमने discuss किए कि जो वहाँ एक कोर्ट में हो रहा है वो सिमिलर से सिनेरियो किसी और कोर्ट में भी वही प्रोसीजरल नॉर्म्स होते हैं, जो कवानीन में हमारे तो बने होते हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट वी फॉलो थ्रू, बट जहाँ पे एनॉमलीज आती हैं, यूनिक सिचुएशंस आता है, उसको किस तरीके से हैंडल करें। तो सेम एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली
That's something that Madam Faima also spoke about कि जो particularly आपके seniors थे उसी post के अंदर उसी courtroom के अंदर what experiences they had. So something very specific even to the courtroom or that particular court. That's something that can always be shared in this type of networking ideal and a sense of group achievements come in this aspect together. क्योंकि आपके group की achievement क्या है? पूरा जो ये सिंध जुडिशरी को जो आप represent करते हैं collectively. राइट तो जहाँ पे फेडरल की तरफ ये रिपोर्टिंग जाती है पर्टिकुलरली जैसे आपके लॉ एंड जस्टिस कमीशन है उसको जो उनकी जो रिपोर्टिंग जाती है हर जो हाई कोर्ट के तरफ से कि भाई आपकी जुडिशियल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं व्हाट नॉट दीज थिंग्स ऑब्वियसली गेट रिफ्लेक्टेड इन दैट बिगर रिपोर्ट जहाँ पे आपकी यहाँ पे अगर छोटे लेवल पैमानों पे काम हो रहा है और जहाँ पे सक्सेस हो रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है उसका फिर ग्रुप अचीवमेंट में आइडेंटिफाई एंड शो होता है. So within an organization when you network it increases your access to available resources and information. अच्छा ये भी मैं अगर आप सोचते हैं जैसे मैडम फाइमा ने मेंशन किया था अपने एग्जांपल में कि शुरू में जब ये नई आई हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एक्सपीरियंस था कि भाई सारी चीज़ों को पता नहीं था उसको बाद आपको पता अच्छा ये भी रिसोर्सेज हमारे पास अच्छा ये भी रिसोर्स हमारे अवेलेबल एंड सम ऑफ दीज थिंग्स विल सरप्राइज एनीबॉडी आज भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है कि हैं और आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे और शायद आपको पता नहीं है कि रिसोर्स है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन के तरीक़ेकार जो है वो सही तरीके से आपको पता है नहीं तो आपने उसको वो किया एंड यू हैव नो आइडिया कि अगर आप एक्टिव कर लें उसको तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा राइट सो if we look to any example, for example there could be some practice नज़ीर का कोई practice हो सकता है the processing of paperwork का कोई चीज़ हो सकती है of course एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक डिफरेंट मामलात होते हैं कभी एंड कभी इस तरह होता है कि आपको अगर ट्रांसफ़र हुए आप सक्कर में सक्कर से आप कराची आ गए कि कराची से हैदराबाद चले गए वहाँ पे शायद कोई एक प्रैक्टिस है अवेलेबल रिसोर्स है जो आपको पता भी नहीं है क्योंकि आपने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका तो उसके अंदर जो है वो मिसिंग हो जाता है इसके अंदर that until you network with people or peers जो experience करते हैं इस चीज़ को that's something that you would miss. Another is of course it helps expand your thoughts and ideas with those of others. अच्छा ये भी मैं आपको एक चीज़ ज़रा समझा दूँ. How many of what is the word in our language उर्दू में अगर मैं आपको बताऊँ जो इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट के हवाले से है anybody? उर्दू में क्या अल्फाज है जो इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट को हाईलाइट करता है? It's a very easy question. Anybody want to comment on that? उर्दू में कौन सा word है? What's the word in Urdu for intelligence? Because I'm gonna share with you something pretty unique here. Zahanat hai word. Zahanat hai, yes. There's another word I'm looking for, and there's a reason I'm looking for this word so I can introduce you to a concept of कैसे आपके in intelligence जो है increase करने का. Because we're gonna go into Arabic a little bit. गुलाम साहब जी. जो दानिश्वर कहते हैं. दानिश्वर भी है, that's a good word. There's another one I'm looking for. Another word. अकलमंद. Akalmand and akal. ठीक है? Akal, intelligence, having a brain. Now, what's very interesting, and of course, danishmand and these other words, they're also there. But मैं क्यों अकल पे आ रहा हूँ? क्योंकि मैं इसी point को ज़रा expand करने में, हमारे जो thought processes हैं, the word akal actually comes from the Arabic word akal as well, which is the same, very similar from the Arabic. But Arabic, as you know, उसके पास triliteral roots हैं. तो असली जो माने हैं वो actually root verb से आते हैं, which is from the same consonants. लेकिन it's in with a verbal noun. So उसके अंदर जो verb है, it's akala, and the root word is akala. And akala means to connect things together. It actually means to connect things together. ठीक है? तो जहाँ आप connect करते हैं चीज़ों को, connection के अंदर आपका नया थॉट प्रोसेस है. अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपके अगर एक एक्सपीरियंस रहा है अपनी ज़िंदगी में जो भी है, मैं बहुत बेसिक में इसको लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए. बहुत बेसिक बिकॉज दिस इज हाउ आवर माइंड्स एक्चुअली वर्क. आपका दिमाग ही इस तरह फंक्शन करता है.
आप जो है एक नई चीज एक्सपीरियंस करने में अपना दिमाग की रजिस्ट्री के अंदर यू विल फाइंड समथिंग जो आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कहूँ कि जो सिल्क है, ठीक है, सो सिल्क का ये होता है कि मैंने अपने हाथ अगर पहली बार जब सिल्क को मतलब टच किया, वो सेंसेशन सिल्क की जो है मेरे जहन में आ जाती है कि सिल्क इज स्मूथ, ठीक है। कोई नई चीज को जब मैं टच करने जाऊं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जब मैं उसको टच करूंगा, मेरी ब्रेन की रजिस्ट्री में है यार दिस इज लाइक स्मूथ एज सिल्क, राइट। ये कहना भी होता है स्मूथ एज सिल्क, राइट। और दूसरा भी जैसे होता है कि इट टेस्ट लाइक चिकन, राइट। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका जो दिमाग है उसके अंदर रजिस्टर्ड हुआ है कि चिकन का जायका का टेस्ट ये है, राइट। द टेस्ट ऑफ चिकन टेस्ट लाइक दैट। तो नई चीज आप डक खा रहे हैं कि कोई और भी इस तरह से कुछ हो सकता है पहली बार, तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल मुर्गी की तरह है, कि ये बिल्कुल इस तरह और इसके दरमियान में कुछ है। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका एक ख्याल जो रजिस्टर्ड है उसको जुड़वा रहा है कोई नई चीज के साथ जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया, उसको डिफाइन करते हुए कि इसका होता है। तो ये हमारे जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं सारे वो हमारे मेमोरी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। और कोई भी अगर नई चीज हमारे सामने आती है उसको समझने के लिए अपने दिमाग के अंदर मुझे आइडियाज कनेक्ट करने होते हैं कि ये ऐसी नई चीज है, इसका टेस्ट, इसका टच, इसका लुक ये है, तो ये नई चीज है। और उसको फिर आपका दिमाग रजिस्टर करके डिफाइन करता है। जितने ज्यादा आपके एक्सपीरियंसेस होंगे उतना ही बेटर डिफाइंड आपकी चीजें बनती जाएंगी। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आप एक नई चीज सीखते हैं, नई चीज आप लर्न करते हैं, वो चीज जो है अब आपकी रजिस्ट्री में आ गई। और जो पुरानी चीज थी वो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगी अब। कभी इस तरह होता है, ये नई चीज समझने में भी होता है और पुरानी चीज को ज्यादा बेहतर समझने में आपको नई चीज एक वो भी मेमोरी में आ गई। So what your intelligence works in that same manner. So when you expand your thoughts in ideas with others around you, आपका एक idea जो है it's built on many ideas, right? And that one idea combined with other ideas creates a whole web of ideas. आप यकीन करें जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत मशहूर है, एवरीबडी मस्ट नो हिम। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था इसने डोनेट किया था साइंस में, और उन्होंने जो है ब्रेन को सीधा जो है बीच में काटा, और बीच में काट के उसको जो फ्लैट जो वाला है उसमें दे लुक्ड एट द ब्रेन एंड स्टडी द ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के अंदर डिफरेंट हिस्से एंड ऑल दैट, पर जो खास जो हिस्सा उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट था कि जो ब्रेन के अंदर एक चीज होती है, वो they're known as connectors, literally they call them connectors. And what they do, what it does is that आपका ब्रेन के अंदर एक यहाँ पे फीलिंग को अपने ख्याल से, अपने ये स्मेल वाली सेंसेशन से, अपना ये टच वाली सेंसेशन के साथ कनेक्ट करता है। जितना दिमाग के अंदर ज्यादा कनेक्शन होंगे उतना जहनी दिमाग है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एवरेज ह्यूमन बीइंग का 20,000 के करीब कनेक्शंस होते हैं। आप इमेजिन करें एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के अंदर एटलीस्ट 40,000 वो कनेक्टर्स थे। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जहीन, एक हाई आईक्यू वाला बंदा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन कनेक्ट करता था, वो कनेक्ट करता था अल्लामा इकबाल की शायरी से, ये अल्फाज के साथ वो अल्फाज को, उसके साथ वो अल्फाज को, वो स्टैचूट के अंदर, स्टैचूट के अंदर ये केस लॉ के अंदर, एंड दैट क्रिएटेड दैट टाइप ऑफ क्रिएटिव माइंड। और वो एक पिक्चर को देखते भी जो है वो वहां से सीखते थे। पिक्चर को आप अपने रिफ्लेक्शन करें, पौधे को देखते हुए आपको क्या वो आ रही है, ये सारी चीजें जो है आपके ब्रेन में रजिस्टर हो रही हैं। ऐसी चीजें रजिस्टर भी हो रही हैं जो आप कॉन्शियस भी नहीं है। जैसे अभी आप अपनी आंखों के अंदर विजन है, होपफुली आप स्क्रीन को देख रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं एक बच्चा घूम रहा है, वो भी चल रहा है, ये ग्रीन सोफा है, बराबर में कोई दरख्त है, XYZ कोई पेंटिंग है। All these things are being registered in your brain and put in your library, right? And this is the unique thing about each one of us कि आपका खास एक्सपीरियंस जिंदगी में कोई भी आपके बाद एक्सपीरियंस करेगा भी नहीं और ना किया है, ठीक है। Each one of you is a unique individual with a unique experience that shall never be repeated in the history of man ever again. That's the thing. You are unique. And because you are unique, you have a unique library in your memory, unique reference points, and you may have a connection to certain things to explain things better. और जब आप वो शेयर करते हैं, can you imagine आपके experiences भी register होने किसी के साथ, उनका किस तरह से होता है। तो this
literally expands your ideas and thoughts and makes you not only कि एक तो आप socially obviously will be in one sense be very well connected, but आपका अपना जो जहन है ना वो बहुत खुल जाता है, बहुत खुल जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और अगर मशवरा दूं इस लिहाज से, एक तो आप अपने पीर से सीखते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ऑल्सो इंकरेज करूंगा दैट प्रॉब्ली आप इसको एक टू हार्ट लें, उसको टास्क लें। आपके जो पीयर्स हैं जो दूसरे मुल्क में बैठे हैं, ठीक है, आपके जो पीयर्स हैं जो जुडिशियल केसेस करते हैं, मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, हम आपको इतना दूर कहीं जाना भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पीपीसी जो लागू है यहाँ पे, इंडिया में इतना कोई मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इंडियन केसेस को भी, आपको भी पता है, हमारे कोर्ट्स के अंदर जो है मेंशन भी होते हैं टू सम एक्सटेंट। आपके जो है बांग्लादेश के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर भी आपके पास ये सब जो है कहीं दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉडर्न सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको बस 2 मिनट का होना था कि आप लिंक्डइन पे जाएं। और बाय द वे, मैं एक असाइनमेंट वैसे ही दे रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर आप लोगों के पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आप लिंक्डइन का अकाउंट करें, और मैं जो हूँ आपको लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल दे दूँगा, उसके साथ हम कनेक्ट होंगे। Idea is I want you to be connected. I want you to be connected with my 4,300 contacts across the world. Palestinian judge, former Chief Justice Belize, XYZ Namibia. ये सारे लोग आप इनके इंटरेक्ट करेंगे, आपका दिमाग खुलेगा, और ऐसे खुलेगा इंशाल्लाह कि you will be known for your contributions in the level of your work. But that can only happen if you reach out and connect. तो पीयर लेवल तक देखें, अगर आपने अपने बराबर वाले कोर्ट से भी रब्ता नहीं किया हुआ है, मैजिस्ट्रेट जज जो भी सेशन जज है, ये आप करें अभी लाजमी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लीज स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया इन दैट लेवल। प्लीज गेट ऑन लिंक्डइन। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट सोशल मीडिया में लिंक्डइन प्रोवाइड करता है वो कितना बेनिफिशियल है आपके लर्निंग के लिए और आपके करियर सक्सेस के लिए। You have no idea how that has helped me and how I've helped so many others. आप यकीन करें, मुझे तो बैठे बैठे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, लोग कहते हैं हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप फलाने बंदे से रेफरेंस में है, ये वो उन्होंने आपको रेफर किया है, आप जरिए प्रोजेक्ट देख लें। एंड दैट्स समथिंग मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, मैं आपको अपने ज़ाती अगर वो मैं बताऊँ, ये मैं स्टूडेंट लाइफ से कर रहा था। और स्टूडेंट लाइफ से जब मैं इवन आफ्टर आई गॉट माई डिग्री, आप यकीन करें मुझे नौकरी के लिए नहीं जाना था, नौकरियां मेरे पास आई हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे कि, और ऐसे ऐसे आई हैं कि मुझे जो है मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, तो मेरी मर्जी के मुताबिक जो है आई चूज टू गो वेयर आई वांट टू गो। एंड दैट्स समथिंग दैट यू नो आई वाज एबल टू डू बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की अहमियत मैं एम्फसाइज ही नहीं कर सकता कि कितना अहम है। लाइक आई सेड, इफ यू नॉट नेटवर्किंग यू नॉट वर्किंग। और एक तो आप अपने दायरे के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बट गोइंग आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली आप अगर फोकस रखें अपने जो जुडिशल फ्रेमवर्क में ना, आपको इंटरनेशनली पर्टिकुलरली हमारे सिमिलर जुरिस्डिक्शन में देखें, ब्रिटेन ने जब अपनी हुकूमत की तो काफ़ी मुल्कों में की, आप नाइजीरिया, केनिया, बिलीज, ये सारे ममालिक जो हैं वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनके जो रूलिंग्स हैं, you'll be very surprised, उनकी जो लर्निंग्स हैं, that's something that you can use as an idea to help solve some of your own issues particularly, but अपने से पहले स्टार्ट करें वहाँ पे भी, and also on that level. So it helps increase your effectiveness when you're starting a new project. जैसे मैडम फाइमा ने कहा, नया रोल था, नया प्रोजेक्ट था, नई चीज़ें थी, उसको किस तरीके से लेके चलना डेफिनेटली बहुत आसान हो जाता है, instead of working out the issues yourself, and helps you when you are promoted to a position elsewhere in the organization. अच्छा, that obviously is very good. आप आज अभी गुडविल अपने पहले दिन से स्टार्ट करें ना, यकीन करें इट विल गिव यू मच लेटर। अच्छा, बहुत सिंपल सा है, नए नए आए ना, मुझे याद है एक जगह मैं गया था, वहाँ पे एक बोर्डिंग स्कूल का एक आता, लोग आते थे जाते थे वहाँ पे, मैंने अपने अंदर एक वो कर दिया, वो ग्रुपिंग होती थी अलग अलग, कोई इधर से है कोई उधर से, फलाना इस चीज़। तो उसके अंदर जो है मैंने रियलाइज़ किया कि जो नया बंदा आता था ना, वो नया होता था वहाँ पे, शायद किसी के जानने वाला था, शायद नहीं होता, तो उसकी ग्रुप होता था, नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैंने एक पक्का अपने आप को वादा कर दिया कि भाई कोई भी नया वया आए ना, उसको मैं खुद जाके मिलूंगा। खैर नया बंदा है, आई हैव नो आइडिया, मैंने कभी उससे लेन देन मेरा कभी नहीं रहा, ना है वो है, सलाम दुआ हुई, ये हुआ, मैंने उसको अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया, छोटी सी एक मामूली सी, कोई इतना वो नहीं होता था, एक थैंक यू गिफ्ट। जैसे आप अपने मोहल्ले में कोई नया मूव इन होता है ना, तो नया है बेचारा,
राइट, न्यू फैमिली, न्यू, किसी को नहीं, आप जाते हैं अपने नेबर, पहला छोटा सा एक गिफ्ट होता है, चलो मैं आपकी मदद कर लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। सेम थिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई नया बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए तो देन व्हेन यू हैव दैट, वो यकीन करें जिंदगी भर याद रखता है, दोस्तियां हो जाती हैं, और बाद में आपका इतना लंबा लॉन्ग टर्म फायदा होता है, मैं आपको एम्फेसाइज नहीं कर सकता। आपके जो कोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे आपको पता है, कोर्ट 7, 8, 9, 10, इसके अंदर तो जजेस बदलते रहते हैं। जब तक आप हैं वहां पे, एक अच्छा होता है कि आप जो नए लोग आए ना उनको आप खुद जाके अप्रोच करें कि देखा सुना आप जरा नोटिफिकेशन आ गया, आप नए पोस्टेड हैं यहाँ, क्या हाल है, कि मैं फलानी हूँ XYZ। यू हैव एनी आइडिया कि कितना वेलकमिंग वो होता है कि नया बंदा आ रहा है, स्पेशली अगर को कराची में पोस्टेड हो गया, पहली बार शहर में आ रहा है, हैजंट बीन फ्रॉम हियर, दे नीड दैट, राइट, दे नीड दैट टाइप ऑफ थिंग दैट यू कैन प्रोवाइड देम, एंड इतना आपका गुडविल अच्छा बिल्ड होता है इससे, यू हैव नो आइडिया आपको पे बैक कितना होगा बाद में। और छोटा सा ना, मामूली सा एक ख्याल का है, तो ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आज आप जुडिशरी के साथ है, कल आप कहीं और हो शायद, अगर जुडिशरी में भी है तो इसी के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपके मल्टीपल कोर्ट्स होते हैं एक ही डिवीजन के अंदर, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, अगर कराची का एग्जांपल ले लें, हैदराबाद का भी है, एंड सो फोर्थ, यू हैव जजेस कमिंग इन एंड गोइंग, सो इट्स वेरी गुड टू हैव दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस कि आप जो है कोई नया आया, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, और अगेन try to put yourself in the shoes of that person who's coming into the new position. आप भी एक ज़माने में नए थे, और वो दिन याद रखे जब आप नए थे तो कितना डिफिकल्ट था, क्या था, और वहाँ पे भी किन्हीं लोगों के सहारे के ज़रिए आप आगे बढ़ी हैं कि बढ़े हैं। So I don't know, I'm going to open up the floor a little bit to share some more experiences if you've had anything like that. And what are your thoughts around this shared experience, particularly when you were new, and you were being joining somewhere. अगर किसी का कोई है इसके हवाले से तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, because I'd love to hear from your experience कि जब आप नए नए थे, जिससे मैडम फाइमन ने भी इंडिकेट किया था कि अगर जहाँ पे आप नए थे कि कोई नया बंदा था तो उसके साथ अगर आपने उनकी हेल्प की, तो how that has helped your relationship between you, if anyone has anything positive to share in respect to that, or I guess even a negative experience, because वो भी शायद हो सकता है, लेकिन I'm hoping that it's been positive. किसी के पास है कोई इस तरह से कहानी, नई पोजीशन पे जब आप आए खुद, or at least there was someone else that came new, and then how the relationship built from that? Anybody? मैडम 5 मिनट तो शेयर कर दिया, तो मैं चाहूँ कोई और हो। मैडम आलिया सहर साहिबा, यू हैव समथिंग लाइक दैट जब आप नई आई कहीं? I'm going to call out people now. मैडम अनम अयूब, आपका कोई इस तरह से एक्सपीरियंस जब आप नई आई थी ऑर्गेनाइजेशन में, जुडिशरी में, आपका अपना कि कोई नया कोई और था आपके साथियों में जो आया था, उसका एक्सपीरियंस? जी, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब नए जजेस इंडक्ट होते हैं तो उनकी अटैचमेंट होती है जो थोड़े बहुत उनसे सीनियर होते हैं। तो बस ये अटैचमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो आते हैं तो फिर गपशप भी होती है, ऑब्वियसली वो कुछ सीखते भी हैं और इसी तरह हमने भी सीखा अपने सीनियर से, वेरी गुड, और बस यही होता है, ओके, एक्सपीरियंस शेयर होता है। वेरी गुड। सो अटैचमेंट का एक वो है, आई डिडंट नो, बिकॉज़ मैं मैजिस्ट्रेट के नहीं, सो दैट्स वेरी गुड, आई डिडंट नो दैट। ये बहुत अच्छा है कि एक अटैचमेंट का वो वैसे ही होता है, एंड आई थिंक प्रोफेशनली तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे एक रिलेशनशिप भी एक कायम होती है ना। एक तो देखिए प्रोफेशनल, उसमें वो होता है कि यू हैव यू नो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सीखते हुए, लेकिन ऑब्वियसली विद बियॉन्ड दैट ना, एक तो एक आपका एक रिलेशनशिप एक in that sense that I don't know if you learn beyond just the एक technical side से, वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, अगर कोई इस तरह से एक्सपीरियंस रहा है किसी का, और अगर नहीं है तो उन्होंने किसी को दिया जो नए नए आए थे। तो मैडम डायना कुमारी, मैडम डायना कुमारी और मैडम ईशा, I think Madam Fawzia is on hold. We also have with us Furqan Kareem Saab. Furqan Saab. What about Ghulam Mustafa? Sorry, Ghulam Murtaza साहब, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है ब्रांड न्यू जब आप नए नए आए थे? We have someone, मैडम का
नहीं, मैं आई थिंक मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। रीज़न ये था कि मेरी थोड़ी सोशल वैसे ही गैदरिंग जो ये आई थिंक ये प्रोग्राम मेरे लिए ही है। मेरी कोई ऐसी सोशल नेटवर्क थी नहीं, तो मैं इस प्रोफेशन से भी नहीं था, तो अकॉर्डिंगली मैंने इसको इनिशियली स्टेज पे नहीं। हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग जो मेरे जूनियर्स आए थे उनकी काफ़ी अटैचमेंट रही, उनकी काफ़ी हेल्प आउट करता वेरी था, गुड। डिस्कशंस होती रही हैं हमारी। और इवन आज तक जो है व्हाट्सएप पे, टेलीफोन्स पे हमारा राब्ता तो रहता है एक दूसरे के साथ, कि इवन कि कोई भी प्रॉब्लम उनको आता है या हम इवन कि मुझे भी कहीं सेकंड थॉट के लेना होता है किसी जगह पे, हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई मीन इवन योरसेल्फ, आपने कहा ना कि मेरे शायद शायद इतना नहीं हुआ, बट यू हैव गिवन दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू अदर्स। एंड अगर मैं आपसे अगर एक छोटा सा सवाल करूँ फॉलो अप इस हवाले से, तो आपका अब रिलेशनशिप उन जो जूनियर्स के साथ है वो कैसा है? ये बहुत अच्छा मेरा रिलेशन उनसे, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स में है, क्योंकि हमारी पोस्टिंग्स तो होती रहती है कि किसी एक स्टेशन पे उधर उस स्टेशन पे हम नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर इन कॉन्टैक्ट, हम तो डिस्कशंस होती रहती हैं। Very good. मतलब they value your relationship with you, and I think that's something meaningful. जो है like I said, एक खुद internally person meaningful होता है, professionally meaningful भी होता है. So thank you so much, Ghulam Saab, for sharing that. Moving on, and so we get this idea, particularly जब आप नए हैं एक इदारे के अंदर, एंड उसके अंदर जो है एक आप जितनी मदद किसी नए बंदे को दें, एंड प्लस योरसेल्फ व्हाट यू हैव गेन फ्रॉम दैट, सो दैट्स ऑलवेज समथिंग. Now, barriers of networking, lack of confidence in personal skills and abilities. देखिए हमारे लोगों के अंदर थोड़ा सा ये है, वैसे इन जनरल मैंने नोट किया, एंड यू नो आप लोगों ने शायद मे बी नोटेड फ्रॉम मी एज वेल, कि ज़रा मेरे obviously my upbringing has been I spent some time outside, you know I lived in the United States for a little while. तो वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग अंदाज से चलने फिरने का वो होता है. तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही अगर बेसिक एग्जांपल आपको दे दूँ, मैं बहुत ओपन हूँ सबसे मिलने के लिए ना, तो मेरे लिए कोई इतना वो नहीं है कि फलाना ये बंदा है वो है. मैं 1 to 1 हो जाता हूँ चौकीदार के साथ भी, एंड ऑल दैट, एंड हर दूसरे बंदे को चलते हुए फिरते हुए मैं सलाम कर रहा होता हूँ बिकॉज ये मेरे अंदर बस है. तो इसके अंदर बस एक बहुत ही मुझे जो रिएक्शन कभी मिलता है, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ, लोग अजीब तरीके से देखते हैं कि भाई मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, मुझे सलाम क्यों कर रहे हैं. तो तो उसके अंदर ऑब्वियसली मुझे पता है सम पीपल आर ऑब्वियसली वेरी प्राइवेट, एंड सम पीपल दैट पर्टिकुलरली जो इंटरसेक्स रिलेशनशिप्स हैं वो उसमें होता है कि ऑब्वियसली अगर आप सलाम कर रहे हैं और फीमेल है लाइक ये मुझे क्यों सलाम कर रहा है. तो आई अंडरस्टैंड यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा सा उसको वो लिए जाते हैं, वो हमारे बैरियर्स हमने सोसाइटी में इस किस्म के बनाए हुए हैं. अब ये बैरियर्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारे जो आपको कुछ मिल रहा होता है ना, वो आपको मिल नहीं पाता, सिंपली बिकॉज यू हैव क्लोज योर सेल्फ टू इट. एंड जो आप दे सकती हैं वो आप दे नहीं पाती, बिकॉज वो चीज़ नहीं है, ठीक है, देने के लिए कि आपने इंटरेक्ट नहीं किया. Up, that's something that feeds and builds and has weight on your confidence, right? So when we talk about leadership and leadership के जो key skills हैं, leader अगर अपनी आवाम और अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ अगर interact नहीं करेगा और उसके अंदर confidence नहीं होगी personal skills में interaction के, तो बहुत ही एक major चीज़, मतलब there will be a rift. और रिफ्ट के अंदर बैरियर्स जो होंगे, इट विल कॉज एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डाउट बिल्ड होगा, डाउट से जो है आपको पता है 50 चीज़ें हो सकती हैं, एंड दैट्स व्हाट ब्रेक्स थिंग्स डाउन. So you need to build the confidence to open a conversation. And sometimes it's just when you're looking, it's not even, जैसे कोई अगर आपको देखे और आप वापस उनको देखे तो आपका अस्सलाम वालेकुम, that's it, it's a very simple thing as that, or is just an acknowledgement, like a smile and a wave, right? And that's something that, not to say कि आप purposely कर रहे हैं और आप दूर देख रहे हैं, but I'm saying कि अगर इत्तेफाक से ऐसे हो जाए, you have to have a more open aspect to this as a person. Only when you are open can you be allowed to receive. आप close रहेंगे तो you can never receive nor can you give, right? So sometimes it's also very difficult to ask people for help and being unable to reciprocate their favor immediately. आप समझते हैं यार मैं इनसे अगर फेवर लूंगा ना तो मसला ये होगा, फिर मुझे देना पड़ेगा. और ये सोच जो है हमारे लोगों में बहुत है, क्योंकि ये वाली सोच आपको पता है क्यों है? बिकॉज वी थिंक नेगेटिवली. हमारी जो थिंकिंग प्रोसेसेस है कि मैं अगर कुछ किसी से लूंगा तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, और ये चीज़ वो है. और अगर जो दूसरा भी ये है कि आप द अदर पर्सन हु फॉर एग्जांपल इज गिविंग, उनका ये एटीट्यूड होता है चलो मैं इसको ये दूंगा तो मुझे बाद में कुछ मिलेगा. देखिए यहाँ पे जो है ना हमारी दीन ये सिखाता है टू
for in the sense the Islamic principles. It's about what you can give in a relationship. ये नहीं है कि अगर मैं अगेन मियाँ बीवी के उस सिनारियो में जाता हूँ कि बेगम खाना पकाएगी तो फिर मैं घर में राशन लेके आऊँगा और वो नहीं होगा तो फिर मैं ये इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट वर्क्स एट व्हाट यू कैन गिव. आप अगर फोकस होगा ना कि मैं क्या दे सकता हूँ रिसीविंग में, तो आप लिख लें बहुत सारा आएगा. और ये चीज़ जो है आप इस एटीट्यूड के साथ जो भी रिलेशनशिप में हो आपके पीयर्स के साथ अपने नेटवर्किंग कि मैं क्या डाल सकता हूँ उसके अंदर, मेरा हिस्सा क्या है इसके अंदर. That is something automatically the laws of nature work in a way that is going to reciprocate in some manner or form, right? This is of course a very strong belief and not something even just strictly just in Islam. I'm saying even in Christianity is that, right? Do unto others as you would like others to do unto you, right? This is a very similar principle that a lot of faiths and religions promote this morality. तो आपको फोकस होना चाहिए कि मैं फोकस गुड करने के लिए करूं दूसरों के लिए, तो वो रेसिप्रोकेट होगा आखिर में विजय. वांटिंग टू रीच गोल्स विदाउट एनी स्पेशल हेल्प फ्रॉम अदर्स. अच्छा ये भी एक अंदर हमारे अंदर वो किबर किया है, एक वो है कि मैं जाऊंगा, मैं पहुंचूंगा वहां पे, कोई मुझे जरा मतलब अगर करेगा तो फिर ये नहीं होगा यार वो फिर मैं यहाँ नहीं पहुंचा क्योंकि ये वो है. देखिए साफ सी बात है, लेट मी जस्ट ये सारे जो किबर और प्राइड में जरा साइड पे एक चीज कर लूं. आप और मैं कहीं की नहीं रहे अगर हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश नहीं की. कौन से गोल्स? नथिंग. वी गॉट ऑल द हेल्प फ्रॉम देम एंड अदर पीपल, दादी नानियाँ, ये सारा. जहां पे भी आप गए हैं ना आगे, कहीं ना कहीं किसी ने आपका साथ दिया. ठीक है. यस, कुदरती तौर पे आपके पास भी चीजें हैं, बट अगर आप कहें कि आपने अकेला ही ये पहुंचा है, आप बिल्कुल ही यू आर ब्लाइंडेड फ्रॉम द ट्रूथ. द ट्रूथ इज मैनी पीपल हैव हेल्प्ड यू अचीव दिस गोल. और मैनी पीपल, मैं इतना भी कह सकता हूँ, मैनी पीपल जिन्होंने आपने कभी देखा भी नहीं. और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इस कैटेगरी में देखूं, वो है आपके एंसेस्टर्स. आपके अबाव अजदाद ने सिनारियो और सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए ताकि आपके पेरेंट्स ही इस तरह निकले ताकि वो आपकी मदद करें. क्योंकि अगर वो अलग तरीके से निकलते तो आपकी सही तरीके से वो मदद नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भी चैलेंजेस होते हैं, फिर आप कहीं पीछे की तरफ होते. आप समझ रहे हैं? तो ये पूरा सिनारियो जो है एक्चुअली एंसेस्ट्रल भी वैल्यू आती है. दे हैव हेल्प्ड यू रीच द गोल्स यू आर हियर टुडे, एंड इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ दैट, राइट? ईच वन ऑफ यू, लाइक आई सेड, इज सो यूनिक कि एक स्टडी में ऑलमोस्ट कहते हैं एटलीस्ट 20,000 souls, right? Experience study, at least about 20,000 souls in today's time an average person is affected by. That means in the past, up to the future and all that, 20,000 souls. Can you imagine? That's a massive number. So when we talk about that, look at the idea of how you have realized yourself. A culmination. मैं नहीं कह रहा कि जितने आपने reach out किए. I'm talking about people who have helped you, 20,000 souls. That's a lot. That's a lot. So concern about sharing sensitive and competitive information. ये भी अंदर हमारे हैं कि यार मैं ये कर लूंगा, ये आउट हो जाएगा. दूसरे दिन वहाँ पे मैं वो एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस चल रहा था कराची में ना, वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आए हुए थे, हाँ, जो जी सुप्रीम कोर्ट के जो है जज ना. ये पिछले हफ्ते की बात है. यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, गेस्ट स्पीच उनका ही था तो उन्होंने दिया. अब उसके अंदर वो बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लीगल जो टेक्निकल चीज़ें हैं, और फिर उन्होंने उन्होंने वो जो है वो बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है ये जो पाकिस्तान लॉ साइट का है, इसको आप जाके वो उससे कहा, मेरे बेटे ने मुझे ब्रेक किया और उन्होंने वो लॉ साइट के जो आप जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पे जो साइटेशन है अगर उसको निकालना है वो आपको टाइप करना होता है. यू कैन हाईलाइट करके कॉपी नहीं कर सकते उसके अंदर. अपने ऑर्डर के अंदर आपको टाइप करना है तो आपको भी पूरा फिर लिखना होता है उसको. उसने कहा उन्होंने मुझे वो सिखाया है कि आप ब्राउज़र में जाके वो खोल के उसका जावास्क्रिप्ट खोलें, जावास्क्रिप्ट खोलेंगे उसका जो बैक एंड में वेब पेज का है तो वहाँ से आप उठा सकते हो उसका. अब मैं हंसने लगा, मैंने कहा ये सही है कि हियर इज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू हैक इनटू अ वेबसाइट to try to make your work easier. ठीक है. अब ऑब्वियसली जो लोग होते हैं जो हैक्स, these type of hacks, जब नॉट जस्ट फिजिकली मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर हैक, उसमें मैं वो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन एक व्हाट वी कॉल लाइफ हैक और प्रोफेशनल हैक.
right? There's a hack that you can get things done better. अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई इस कोर्ट के अंदर प्रोसेसेस इस तरह चलते हैं और आपने देखा ये नया कोई आया है, ये लंबा चक्कर कर रहा है, वो उधर से साइन करवा रहा है, इधर से साइन करवा रहा है, फलाना करके फिर वो 2 हफ्ते लग रहे हैं। आप देख रहे हैं सारा वक्त, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से अगर मैं शेयर करूं, मैं अपना एक उसको बता दूं कि भाई आप नए ज़रा आपको पता नहीं है, आप बस यहाँ से एक साइन ले लें और इधर से उसको जो है उसकी कॉपी बना लें और यहाँ पे जमा कर दें, आपका 2 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड दिस, मैं आपको देख रहा हूँ 2 हफ्ते से आप ये कर रहे हैं, मैं ये है तरीक़ेकार। तो इसके अंदर क्या है कि ये शेयरिंग सेंसिटिव एंड कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, आपको ये फीलिंग होती है कि ओह मैं अगर बताऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास एडवांटेज है कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये तरीक़ेकार पता है, तो इसलिए मैं टॉप पे जा रहा हूँ। और फलाना फलाना जो है वो चीफ जस्टिस का विजिट हुआ था, उन्होंने मेरी तारीफ की क्योंकि एक्स वाई जेड मैंने अपने केसेस इतने निकाले और एक्स वाई जेड जो भी चीज़ की, इसके अंदर ये हमारा कंसर्न होता है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग, आप लोगों को तो शायद पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में, आई होप राइट, होपफुली आईपी लॉ जो है Sir, इंटेलेक्ट I have been there for three years राइट, as सो an assistant director legal. ओके, वेरी गुड। सो आईपी लॉ में आपको भी पता होगा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, वन ऑफ द की थिंग्स कि जो फंडामेंटल है पैटेंट और लॉ के अंदर, सारे आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा अपने एलएलबी में आईपी लॉ के कोर्स के अंदर, द की थिंग इन अ पैटेंट, यू नो व्हाट अ पैटेंट इज देयर फॉर? पैटेंट इज देयर फॉर व्हाट पर्पस? कोई मुझे बता सकता है पैटेंट क्यों, उसकी जो जो फिलॉसफी है पैटेंट की वो क्या है? मतलब क्यों क्यों पैटर्न्स को encourage किया जाता है आप पैटर्नाइज करें? एक्सेप्ट फॉर गुलाम मुर्तज़ा बिकॉज ही वर्क 3 years कोई और बता सकता है कि पैटर्न जो हम एक चीज करते हैं, एक प्रोडक्ट को करते हैं, एक मसाले को करते हैं, एक जो भी चीज है कुकिंग रेसिपी को करते हैं, ये क्यों क्यों पैटर्न क्यों करते हैं? पैटर्न की फिलॉसफी क्या है? एनीबॉडी? I would love some conversation. कोसार साहिबा, मरियम सबा साहिबा, नाजी अजीम, रोजीना, अगर आप कुछ कहना चाहें। पैटर्न जो है क्यों होता है, मेरा ये सवाल है। नीलम साहिबा, उस्मा मेटलो। It's all right. I mean, there's no right or wrong answer. So please, I'm not going to give you mark. But I would like Aziz Saab जी। मेरा ख्याल है उसको यूनिक रखने के लिए, मतलब डिफरेंट रखने के लिए बाकी सब चीज़ों से उसको ठीक है, पैटर्नाइज किया जाता है। डिफरेंट रखने के लिए वो सही है, लेकिन इसकी एक्चुअली जो फिलॉसफी है इसके पीछे, जो डीप फिलॉसफी है, ये बहुत आपको शॉकिंग लगेगी अगर आपको पता होगा। वी हैव फुरकान, आई डोंट नो, अनदर वन, समवन रेज योर हैंड। अच्छा फुरकान, ओके फुरकान, यू वांट टू आंसर? व्हाट डू यू थिंक पैटर्न क्यों है? I just wanted to add, maybe it is because वो एक ऑनरशिप आ जाती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि कोई चीज अगर एक बना ले और वो चल जाए तो फिर उसके पीछे लाइन लग जाती है उसी के नाम की, सही है। तो to protect that. आप देखिए, आप अगेन सोच रहे हैं वो लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि वो कंपेटिटिव नेचर है तो वो मुझे फायदा मिले। ठीक है, वो उसका एक एलिमेंट है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो फिलॉसफी वो कुछ और है, वो भी है, मैं इसके ऊपर आता हूँ। लेकिन आप शॉक में रह जाएगा आपका क्या है। आई डोंट नो इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड, आई टेक वन मोर कमेंट अगर किसी का है इसके अंदर। प्लीज मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा इंटरेक्ट करें इसके अंदर। आईपी लॉ के अंदर पैटर्न जो है, प्लीज, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू से, आप अपना आइडिया शेयर कर लें, क्यों है, उसकी फिलॉसफी क्या है? एनीवन मोर? एक और, एनीबडी? मैडम शफिया इमरान, शफकतुल्ला उनर, मैडम शुमाइला। Do we have anybody who would like to share anything else on the pattern and pattern की philosophy क्या है? अच्छा, we'll come back around. I think some people are probably like कुछ गलत चीज ना कह दें। पैटर्न के अंदर देखें, जो खास चीज है ना, पैटर्न प्रिजर्व्स द रेसिपी। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक खास रेसिपी है ना, यू नो, आई नो, यू नो, सम ऑफ अस लव टू कुक,
राइट, और मे बी हमारे जो ख़ानदान में कोई रेसिपी आ रही है, वो एक ख़ास रेसिपी है बिरयानी की और ख़ास रेसिपी है खीर बनाने की और वट एवर, उसके थोड़ा सा ये डाल दें, थोड़ा सा ये डाल दें, तो वो एक ख़ासियत हो जाती है उसके अंदर। लेकिन वो रेसिपी अगर आप अपने पास रखते तो क्या होता, आपका जब इंतकाल होता तो आपके साथ चले जाता, ख़त्म कहानी, और किसी को पता ही नहीं आप खाने के अंदर क्या वो डालती थी, जो खाने का जायका ही वो एक यूनिक हो जाता था, राइट। सो व्हेन यू शेयर इट, देन द रेसिपी गेट्स प्रिजर्व्ड, ठीक है, द रेसिपी गेट्स प्रिजर्व्ड, प्रोडक्ट का जो आइडिया है आपका, भाई आपके पास आया ना वो खास ख्याल, उसको आपने पैटेंट किया, तो एक तो आपने कहा अपने आप को मैं इंटेलेक्चुअली आईपी लॉज के जरिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपना प्रोडक्ट को फिर मैं ही इसको बना सकता हूँ, मैं ही बेच सकता हूँ। लेकिन पैटेंट के अंदर सारा लिखा होता है, इसके अंदर 10% ये है, 5% ये है, 15% ये है, इसके साथ ये लोहा लगता है, इसके यहाँ ये डिज़ाइन है, इसका स्क्रू का डिज़ाइन ये है, ये सब लिखा हुआ जमा हो जाता है। क्योंकि जब पैटेंट का टाइम पीरियड एक्सपायर्ड आता है ना, तो कोई और उसको लेते हुए उसके ऊपर वो कुछ बना सकता है। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते, पैटर्न नहीं करते, तो वो डिजाइन आप ही के साथ रहता है और आपके साथ मर जाता, खत्म कहानी हो जाती है उसकी, उसके फिर इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट लेटर ऑन टू एनीबॉडी, क्योंकि आप जब जिंदा हैं तो उस वक्त वो चीज़ है। लेकिन पैटर्न इसलिए है ताकि आप सारा उसका प्रोसीजर, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका आप शेयर करें, शेयर करके वो रिकॉर्ड के लिए प्रिजर्व हो जाए। आप लोग सारे अदालतों में काम करते हैं, रिकॉर्ड में हम प्रिजर्व करते हैं चीजें, सेम थिंग पैटर्न ऑफिस इज द सेम में, वो रिकॉर्ड में प्रिजर्व हो जाए ताकि सदियों के लिए वो वही रहे, और जो इसको लेते हुए किसके ऊपर बिल्ड करना चाहे वो बाद में भी बिल्ड कर सकता है, जब पैटर्न का टाइम पीरियड जो है एक्सपायर हो जाए, और उसके ऊपर फिर देन वो रिकॉर्ड में आ चुका है, वो आपने पब्लिक कर दिया, शेयर कर दिया, तो उसमें वो होता है। एक और चीज़ अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आज जो आप सारे जो कंप्यूटर्स ये सारी चीज़ देख रहे हैं, ये जहाँ पे आपके कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, एक चीज़ आपने शायद सुना हो, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का ये है कि मैंने एक प्रोग्राम बना दिया और उस प्रोग्राम को मैंने ओपन सोर्स कर दिया, सारा उसका कोड जो भी है सारा अवेलेबल है, आपको जाके कोई भी चीज़ चेंज करनी है जाके एडिट करके आप नया एक वर्जन उसका प्रोग्राम का बना लें। इसके अंदर आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आए और अपना हिस्सा डालें, क्योंकि मैंने देखे ये पूरा बनाया है, पूरा आप लोग इस्तेमाल करें। कुछ कंपनीज है वो कहते हैं नहीं हमने प्रोडक्ट बना लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आज आप इस्तेमाल शायद कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट और जनरली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर जो है इट्स नॉट ओपन सोर्स, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोड बनाया, प्रोटेक्ट किया हुआ है और आपको बेच दिया। लेकिन क्या होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। जहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिनक्स है, ये दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जो है लोग अपना दो हिस्सा डालते हुए इसको इजाफा कर करके बेहतरी की तरफ लाते हैं, ठीक है। दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स में जो है पुराने ज़माने में तो और बुरा होता था, आप एक वर्जन खरीदते थे, उसके अंदर क्या मसले निकलते थे, आपका हैक हो गया, ये हो गया। भाई अगर पूरा नक्शा अगर शेयर होता तो जहां मसले होते तो वो आइडेंटिफाई भी हो जाते और जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते, सॉल्व भी हो जाते हैं। तो दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी पॉपुलर। सो शेयरिंग सेंसिटिव एंड कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन कंसर्न है कुछ हद तक, लेकिन लेट नॉट दैट बी अ थिंग टू लिमिट यू from doing that, for it could really benefit someone else and you could create an environment for that. Strategies for building an effective network: organize your current network. अभी भी आपका जो नेटवर्क हो रहा है आपके पास, how have you organized it? Who have you kept in your network? Right? Identify people you already know and enter their names into a database. Expand your network and nurture those relationships. देखिए, इट्स वन थिंग, हमें मुझे पता है कि आप जाके फेसबुक पे अगर हैं, राइट, विच इज़ अ सोशल मीडिया इंटरेक्शन टूल, मैं नहीं मना करता, लेकिन क्योंकि आप सब प्रोफेशनल एक एनवायरनमेंट से हैं, दैट्स वाई मैं लिंक्डइन को रेकमेंड करता हूँ। एंड इनफैक्ट मैं अगेन एम्फेसाइज ये कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है, आज ही जाके फौरी सूरत हाल पे आप बना लें और वहाँ से अपना नेटवर्क स्टार्ट करें। वो प्रोफेशनल नेटवर्क है, आपको बहुत फ़ायदा देगा आने जाने में, in the future and during your career. And I think that's something that you cannot, forget and lose sight of. आप लोग इस दौर में रहते हुए अगर LinkedIn को इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने फ़ायदे के लिए प्रोफेशनली, you are letting go of something that is something extremely beneficial for your career and profession. Honestly, मैं आपको honest बता दूँ.
तो वहां पे मैं मैजिस्ट्रेट से सीखता हूँ। वहां पे एक इस्लामाबाद में एक मैजिस्ट्रेट साहब है, आमना साहिबा, वो हर वक्त केसेस शेयर कर रही होती हैं, हर वक्त अपने जो कोर्ट रूम के साथ चीजें शेयर कर रही होती हैं। इतनी मेरी लर्निंग होती है उसमें से, राइट। ऑफ कोर्स हमारी कमेंट्री भी उधर चल रही होती है, कमेंट करते हैं उसके अंदर, मैडम व्हाट अबाउट दिस, अच्छा सीपीसी में ये है तो व्हाट अबाउट दिस, इसका ये रूल है, अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी। ये सब नेट, ये इट्स हैपनिंग लाइव राइट नाउ, and some of those solutions and stuff may be important, and come to establish in that. So organizing this, particularly in developing an effective network, and do not be afraid to connect to people. Do not be afraid. एक तो आपका existing अगर structure है वो सब उनके साथ connect करें. So if you go to LinkedIn now and LinkedIn में आप अपना account बनाएं तो existing लोग आपके सामने आ जाएंगे, चला फलाने बंदे को मैं करता हूँ, जैसे हम सब हैं अभी इस network के अंदर, हम सब मौजूद हैं, राइट। हम जो 30 लोग 40 लोग जो इसके साथ चल रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं, हम जो है 31 लोग हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, हमारे नेटवर्क। और लिंक्डइन के अंदर ये प्यारी बात है कि आपका सेकंड लेवल नेटवर्क बन जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे साथ लिंक किया तो मेरे जो सेकंड लेवल के लोग हैं जो मेरे साथ फर्स्ट लेवल के हैं वो आपके सारे सेकंड हो जाते हैं, और आपके जब सारे सेकंड हो जाते हैं तो आपका नेटवर्क की कुछ टूल्स जो हैं वो एक्सपैंड इमीडिएटली हो जाता है, एक वेब की तरह है। आप समझ रहे हैं कि एक के साथ कनेक्ट हुआ तो वो 10 लोग के साथ कनेक्टेड है, तो वो 10 लोग जो है आपके सेकेंडरी कनेक्शन पे आ जाते हैं। और सेकेंडरी कनेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि थर्ड कनेक्शन में होता है कि यार बंदा तो थर्ड पार्टी है, जो हम कहते भी ना इन लॉ, हम कहते हैं थर्ड पार्टी, समवन फार अवे, समवन दैट इज दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस। बट जहां आपका एक कनेक्शन है उसके जितने कनेक्शन हैं वो सारे वो रेफरेंस के जरिए आ सकते हैं। वो कहता है ओह यू कनेक्टेड टू सो एंड सो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें आपका भी फायदा होगा अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना, फिर आपकी अपनी एक रिलेशनशिप हो जाए, कनेक्ट कर लें। आप यकीन करें, मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल अगर मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस, मैं जाता था मतलब हर जगह लोगों से मिलने, पर्टिकुलरली जब मैं पाकिस्तान वापस आया ना। देखिए आप शायद मे बी अ लॉट ऑफ यू वर बोर्न, अपनी कम्युनिटीज़ हैं, आपकी अपनी फैमिली है यहाँ पे, आपके मतलब स्कूल के हैं, कैडेट कॉलेज के कोई दोस्त होंगे, आपके यूनिवर्सिटी की कोई एक नेटवर्क होगा। मैं यहाँ आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ हद तक मेरे फैमिली रिश्तेदार वाले थे, ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास मेरे वालिद साहब के जो जानने वाले थे। देखिए मेरे वालिद साहब एक कनेक्शन हो गया ना, उनके थे तो उनके ज़रिए मैं कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी इनके साथ कनेक्शंस हो गई अलग, ठीक है। फिर मैंने खुद ये सारा अपना जो भी आज मैं बैठा हूँ वो बनाया इस लिहाज से, क्योंकि एक से बढ़ के एक करके कनेक्ट करता रहा, राइट। एंड spend time with them, spend one on one in them, get to know your contacts। मैं, आप यकीन करें, मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि एक रमज़ान भी नहीं गुजरना चाहिए जहाँ पे इधर हमारे पास कोई नहीं आ रहा कि हम किसी के पास नहीं जा रहे, बिकॉज ये फूड इज सच एन अमेजिंग थिंग टू कनेक्ट ओवर। एक इंग्लिश का कहना है टू ब्रेक ब्रेड टुगेदर। एक जो रोटी का टुकड़ा है ना, जब साथ शेयर करते हैं खाने की मील के ऊपर, वो जो कनेक्शन उस वक्त पाया जाता है ना, कहीं और किसी और टाइम पीरियड पे नहीं होता। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। आप लोग सारी दावत क्यों करते हैं? हमारे कल्चर के अंदर दावत का क्यों ये रवायत है? दावत के ये कि खाने पे बुलाओ, खाने पे गुफ्तगू होगी, खाने पे होगा। अपने साथियों को पीयर नेटवर्किंग के लिए यू मस्ट मीट विद देम। वैसे मैंने कहा चाय का वक्फा है, चाय के ऊपर कर दें। देखें, ये आपको बहुत फायदा होगा लंबा, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। आई मीन इस हद तक हो गया, मेरी वाइफ तो अनोय हो जाती है कभी। मैं कहा आपका तो हर दूसरे दिन कहीं खाने का होता है, पता नहीं आपके साथ क्या चल रहा होता है, जरा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। तो वो इस हद तक भी ऑब्वियसली आपको बैलेंस करना पड़ता है अपने फैमिली टाइम, एंड आई नो कमिटमेंट्स होते हैं, बट यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। टेक चार्ज के मैं आपको बताऊं, मैं अपना अगेन एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और मैं अपना एक लाइफ हैक सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा नेटवर्क एकदम से जो है बड़ा क्यों हुआ है। इंशाल्लाह आप जब लिंक्डइन पे ज्वाइन करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दैट्स समथिंग दैट आई एम वेरी गुड एट डूइंग, कनेक्टिंग विद पीपल। तो और क्यों मैं इतने सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, एंड यकीनन जब मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा आप देखेंगे कि यार ये मेरे ये वाले भी जानते हैं, ये भी इनको जानते हैं, शाह साहब को ये भी जानते हैं। एंड इस तरीके से आपको फिर रियलाइज होगा कि कितना इंटरकनेक्टेड आई हैव बिकम, एंड हाउ यू विल बिकम एज वेल द मोर यू कनेक्ट। तो व्हेन आई फर्स्ट केम, लाइक आई सेड, मुझे तो कुछ नहीं पता, 2014 की बात है, व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान।
एंड लोगों ने मुझे यहाँ कहा कि बेटा देखो तुम कहाँ जा रहे हो ना, इस मुल्क के अंदर दो चीज़ें चलती हैं, एक पैसा और ताल्लुकात। तो हमने कहा कि भाई हम तो एक गरीब, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब मेरे आई वुड से दैट अपर मिडिल क्लास का हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पेड़ पे पैसे ऐसे नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट, राइट? हम मेहनत करके अपने घर में पैसे लाते थे, हमारे अबाव अजदाद ने भी यही किया, कोई इस तरह से सिल्वर स्पून अपने मुंह में लेके यहाँ नहीं बैठा, ठीक है? वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर सिचुएशन। तो मैंने कहा चलो पैसों को तो जो अल्लाह की तरफ से रिस्क होगा आ जाएगा अपने हिसाब से ना, लेकिन किस चीज़ पे मैं फोकस कर सकता हूँ कि ताल्लुकात, जान पहचान। तो आप यकीन करें मैंने इस चीज़ को अपने दिल पे ले लिया। मैं चौकीदार को नहीं छोड़ता था, मैं चौकीदार को नहीं छोड़ता था। इस हद तक मेरा एक जो एब्सेशन हो गया था, लोगों को मुलाकात करना, बैठना, गपशप करना चाय के साथ। आई मीन इस हद तक भी मैं समझता था कि यू बी इट्स मोर एन एक्सट्रीम। मैं बैगर के साथ भी जो होते थे, जो सड़क में जाते, कोई हिजरा भी जा रहा है, मैं समझना चाह रहा था लोगों को, बिकॉज आई एम ए वेरी पीपल पर्सन, मेरे अंदर ये चीज़ है, इसलिए मैं लॉ में भी इसलिए आया हूँ। लॉ क्यों मैंने टेक ऑन किया, मैं क्यों पढ़ाता भी हूँ एकेडमिक्स में, बिकॉज एक कनेक्शन मुझे जो होता है लोगों के साथ। और इस काम के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस के अंदर, आपका की इंटरेक्शन है अवाम के साथ, लोगों के साथ, एंड यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन। सो आई सेड व्हाट एम आई गोइंग टू डू। सो लोग कहते थे यार कॉन्फ्रेंस होता था, मुझे आया, मैंने कहा अच्छा फलाना पीसी में कॉन्फ्रेंस है, चलो। एंड उस वक्त मैं क्लासेस भी ले रहा था, लेकिन क्लासेस के दरमियान ब्रेक्स वेक्स सारा ये होते थे, कुछ डेज ऑफ होते थे। और यकीन करें मैंने ऑफ डे पे कुछ टाइम मैंने ऐसे कोई फालतू स्पेंड नहीं किया। मैंने सुना फलाना कोई जस्ट जुडिशल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, फलाना ट्रेनिंग चल रही है इसकी चाइल्ड राइट्स के ऊपर, फलाना ये चीज़ चल रही है, पीसी में चल रहा है, मूव इन मिक पे चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे, पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ कराची के हवाले से, जो लोग हमारे साथी कराची में, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, आप यकीन करें आज भी चले जाएं होटल में जाएं, वहाँ पे सारे आपको नजर आ जाएंगे। कोई वाटर राइट्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई फलानी चीज़ के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं चले जाता था। मैं उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं चले जाते थे, एक तो वैसी मुफ्त की चाय मिल जाती थी और खाने का कभी कुछ मिल जाता था। लेकिन वो जो असली बात जो मैं था ना वहाँ पे, विच वॉज द रियल थिंग, टू रियली बी ऑनेस्ट विद यू, इसके मैं प्लान करता था कि जो जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और चीज़ें ये हो रही है ना पूरे शहर में, कि ये चीज़ हो रही है, मुझे ये अटेंड करना है। और जो स्पीकर्स थे, मैं स्पीकर्स को थोड़ा सा रिसर्च करके जाता था। रिसर्च करके जाने के बाद आई यूज टू हैव डिजाइन द क्वेश्चन, टॉपिक पता था क्या, और फलाना जस्टिस साहिबा स्पीक कर रही हैं तो ये कहेंगी, इन्होंने ये आर्टिकल भी लिखा है और ये टॉपिक है। तो वो जो क्वेश्चन था वो मेरे जहन में आधा बन चुका था, ठीक है? मैं जब उसमें बैठता था, तो जब वो थोड़े से गुफ्तगू के दौरान जब वक्त आता था, वक्फा आता था, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का टाइम आता था, आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया हो, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर वो आधा सेकंड, 1 मिनट जो है साइलेंस होता है। वो कहते हैं एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन आंसर, कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए 500 लोग बैठे हुए, किसी एक बंदे का हाथ नहीं ऊपर जा रहा, राइट? 30 सेकंड तक वो बिल्कुल एक एक साइलेंट है। मैंने कहा ये है, इसको मुझे कैप्टिवेट, इसको मुझे कैप्चर करना है। तो जो मेरा प्रॉब्लम और जो क्वेश्चन है, मैंने इंटेलिजेंटली ऑलरेडी फ्रेम कर चुका हूं। उनकी गुफ्तगू के दौरान 2-3 अल्फाज और 2-3 पॉइंट्स को चेंज करते हुए मैंने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन बना चुका हूं। इंटेलिजेंट बिकॉज इट टेक्स टाइम ना, ऐसी दिमाग में कोई डीप सवाल कभी नहीं आता। कभी आपको मे बी इफ यू आर रियली गुड यू कैन लिसन एंड गेट दैट, बट डू सम होमवर्क एंड कम, इट इज मच बेटर। तो आपने उनका आर्टिकल भी पढ़ा है, उनको पता है क्या कहने वाले हैं। इंटेलिजेंट सवाल मैंने फ्रेम किया, और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, वो कह रहे हैं ना एनीबडी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मेरा हाथ ऑलरेडी ऊपर होता था। और मुझे पता है वो मुझे अगर सेलेक्ट भी करना नहीं चाह रही ना, कि करना चाह रहा, जो भी मॉडरेटर होता है ना, कभी वो देखते हैं यार कोई बड़ा बंदा आस्क कर ले, ये कौन सा उधर बैठा हुआ है पुराना, वो उधर पीछे ना, लेकिन फिर दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं, वो कहते हैं यार इसने तो खड़ा किया हुआ, इसका तो ले लो। आखिर में मजबूरी मेरे पास ही उसको आना पड़ता है, तो वो कहते चले आप इनको माइक दे दे। तो माइक आता था तो मैं क्या कहता था, मैं कहता था Assalamu alaikum. My name is Sayyid Muaz Shah and I'm a legal professional working with XYZ. Right? थोड़ा सा एक brief मैंने अपना दिया, और फिर मैंने कहा I have a quick question for panelist number so and so, Justice Nazar Akbar. You spoke about ta 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 ta. और आपने एक आर्टिकल भी लिखा था last year about this issue. इसको कंपेयर करते हुए आपने जो आज बात की है, आप कैसे देख रहे हैं? अब सवाल मैंने फ्रेम करके ऐसे दिया है कि सवाल इंटेलिजेंट हो गया, और सवाल ऐसे इम्पैक्टफुल वाला होता था कि लोग अप्रिशिएट भी करते थे कि यार ये बड़ा सवाल है। लोग क्या, पैनलिस्ट अप्रिशिएट करते थे
एंड आप यकीन करें इतनी दफा हुआ है कि पैनलिस्ट खुद आके रिफ्रेशमेंट के टाइम पीरियड पे कहते हैं कि ओह दैट वाज अ रियली इंटेलिजेंट क्वेश्चन, थैंक यू, व्हाट इज योर नेम यंग मैन, दिस इज माय कार्ड, दिस इज माय कार्ड। जो मेरे टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे, जब पहले बैठता था तो कोई आपको जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने इतना इंटेलिजेंट सवाल पूछा, बाद में वो कहते थे सर हु आर यू, आई हर्ड you're in legal, this is I'm so and so, I work in the IT field, I am XYZ IT field. There wasn't one conference, one seminar, one anything जिसके अंदर मैंने आधे दर्जन कार्ड्स नहीं लेके गया हूँ, एटलीस्ट 6 बिजनेस कार्ड्स, मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं 12 13 14 20 के करीब भी गया हूँ। और आप यकीन करें ये नेटवर्क जो है मैंने इसलिए नहीं देखा कि ये मुझे कोई फायदा देगा, ये देखिए ये भी हमारी बहुत छोटी सोच होती है कि मैं इसके साथ ताल्लुक रखूंगा मैं क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा। नो, दिस वाज अबाउट कि मैं अब कनेक्ट हो गया हूं, अब मुझे पता है ये बंदा जो है दूध बेचता है और इसको दूध की जरूरत है, और वो कहते हैं यार शाह साहब आपको जानते हैं फलानी चीज है, आप मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल कोई जानता हूँ। तो मैं इस किस्म का बन गया कि दोनों के दरमियान मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, and I became a connector of people, and what that resulted in is आपका goodwill increase हो गया, क्योंकि वो कहते यार इतना अच्छा बंदा है, मेरा काम यहाँ फंसा हुआ था इसने निकाल लिया, इसके बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। और वहां पे अगर मैं छोटी सोच होता ना तो फिर मैं कहता हाँ यार मेरा भी ख्याल कर लेना, जो हमारी जो छोटी सोच होती है अनफॉर्चुनेटली ये बहुत छोटी सोच होती है कि हम बड़ी सोच की तरफ जाते नहीं है, कि आप अपने कमीशन काटने बैठ गए, अपने ये करने बैठ गए, मुझे भी कुछ इसमें मिले, ये बहुत छोटी सोच है। क्योंकि ये बड़ी सोच की वजह से ना मेरे पास अब इतना गुडविल है कुछ लोगों के अंदर कि कभी भी अगर जरूरत मुझे पड़े, मुझे पता है एक फोन कॉल होगा सेनेटर उठाएगा, एक फोन कॉल होगा आईजी उठाएगा। ये रिलेशनशिप्स अगर मैंने डेवलप किए हैं वो इस बेसिस पे हैं, राइट। आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो पूरी ट्रेनिंग हो रही है एसजीए के साथ, बिकॉज मेरा एक रिलेशनशिप शाहिद शफीक के साथ है, शाहिद शफीक तो मेरी शादी में भी आए थे तो मैं एक चीज आपको बताऊं, वो शाहिद शफीक को वह कहाँ से मिला, मैं एक जियावान के प्रोग्राम में था, वहां पे हमारे अच्छे ताल्लुकात हुए, फिर जस्टिस साहब को भी जानता था, आपके एसजीए के जो प्रीवियस भी रहे हैं, खलजी साहब मुझे पर्सनली जानते हैं, खलजी साहब के बाद भी जो हैं ये सारे जो हैं एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक, दैट कनेक्टेड अस पीपल and connected us together to bring this to you today. आज जो हम कर रहे हैं it's all because of connections, it's all because we knew each other, and एक confidence था, एक trust था, and you have to take conscious effort and take control of potential opportunities. आप अगर इसको नहीं कर रहे हैं ना, then this is a big 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 fault of yours. This is a huge fault of yours कि आप इसके ऊपर एफर्ट नहीं कर रहे। एंड मैं आपको यकीन करें हम सोशल मीडिया पर स्पेंड टाइम करते हैं, फजूल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, अमूमन हम इसको पॉजिटिव नज़रिए से कर रहे हैं, यूज इट इन अ पॉजिटिव वे, यूज लिंक्डइन पर्टिकुलरली, मैं कहूँगा ज़्यादा आप फोकस उस तरफ जाएं एंड वहाँ अपने आप को कनेक्ट करें, लर्निंग करें, वहाँ पे चीज़ें ऐसी शेयर होती हैं दैट कैन बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल कैपेसिटीज। So now, just a little kind of key points before a networking meeting. Make networking a high priority. Set specific networking goals. मतलब आपके भी अगर कोई goals हो ना, targets, ऐसे भी मेरी तरह मत हो जब मैं शुरू में यहाँ आया वापस पाकिस्तान में सबके साथ मिल रहा था, अब यकीन करें हर कॉन्फ्रेंस में जाता था, लेकिन खैर वो भी एक अच्छा रहा क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं असल में पाकिस्तान और जहाँ पे जो वर्किंग है इसको सही तरीके से समझना चाह रहा था कि क्या सिस्टम है यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस वक्त जो है हर किसी से मिल रहा था। लेकिन अब मेरा जो है नेटवर्किंग जो मेरा प्रोसेस अब बहुत फोकस्ड हो गया, बिकॉज दिस इज द वर्क आई एम रिलेटेड विद, एकेडमिक्स, लॉ, right? Law and justice, reform, current affairs. This is the area, international relations. ये मैं इस एरिया में काम करता हूँ. This is my focus area. So I stay in this lane. I don't go into IT. I don't go into agriculture और ये सारी चीज़ें कि मेरे हैं नहीं ये चीज़ें. Oil and gas तक बहुत touch है, but not really into it. ये सारी चीज़ें other areas. तो get your specific networking goals कि आप क्या achieve करना चाहें. And start with a small circle of well-known associates and friends. प्रैक्टिस स्मॉल टॉक। देखिए स्मॉल टॉक बहुत अहम है, स्मॉल टॉक के अंदर ये होता है खैरियत का पूछना, ख्याल का पूछना। यकीन करें आपकी ईद आ रही है, ठीक है, अब ईद के अंदर मुझे पता है सब क्या करते हैं, आप लोग भी शायद ये करते हो, आपने वो एक तस्वीर निकाली, ईद मुबारक की और सबको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ जो है मैं आपको बताऊं ये नुकसानदेह है, नुकसानदेह एक लिहाज से क्योंकि ठीक है किसी ने आपने भेजा, कोई उसके ख्याल में आ जाए, लेकिन द बेस्ट थिंग इज टू गिव अ स्मॉल लिटिल कॉल, डजंट हर्ट,
मेरे अंदर तो ये होता है कि मैं रिश्तेदारों के साथ तो पर्टिकुलरली करता हूँ कि ईद तो एक ऑब्वियसली कहीं दूर है, क्या है, कोई कज़न है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक फ़ोन पे बात हो जाए, बच्चों से बात हो जाए। एक स्मॉल टॉक का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी जा रहे हैं गुजरते हुए, जैसे उधर मैडम ने शेयर किया था शुरू में, ऐसी सलाम दुआ का एक वो होता है, तो बात निकल जाती है कभी ना। देखें, अब फिर आप बॉडी लैंग्वेज भी रीड करें। Particularly, this is extremely important to building these small little relationships that brings up into the realm of leadership, because आपका एक connection है लोगों के साथ। And know the organizational culture. देखिए, कुछ चीज़ें हैं आप शायद अपने प्रैक्टिस में कहीं हैं और यहाँ की प्रैक्टिस में कुछ और है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक मशहूर कहना है, बी इन रोम एज द रोमन्स। इसका माने क्या है? इसका माने ये है कि बी अ जस्टिस और मैजिस्ट्रेट एज इन द मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बी इन द सेम वे, जिस तरह से उनके उठना बैठने के जो तरीक़ेकार हैं, जो लिमिटेशंस है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए। तो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर, पर्टिकुलरली जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। अगर बाहर उससे बाहर है तो ये भी रियलाइज़ करें शायद उनके प्रैक्टिसेस थोड़े से अलग हों, तो इसके अंदर आप भी केयरफुल होते हैं कि अफेंडेड कोई ना हो, और वो भी केयरफुल होते हैं कि आपके साथ भी कोई ऑफेंसिव चीज़ ना हो। So during the networking meeting, focus completely on the other's need initially. मैं आपको, ऑफ कोर्स, कोई क्या पसंद करता है कि आप किसी से मिल रहे हैं कि भाई, मुझे यकीन है आप लोगों का सब ये गुजरा होगा, कोई इस तरह से, कोई जानने वाला इस तरह होगा कि इसकी कॉल जो है 1 साल 6 महीने बाद आती है, और वही बंदे की कॉल आती है, आपको पता है कॉल उठाने से पहले कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो है मुझसे कुछ जानना चाहती है, राइट? दैट फीलिंग कम्स, क्योंकि आपको पता है दैट्स द ओनली रीजन दे रीच आउट टू यू, राइट? तो जब आपका ये इस किस्म का रिलेशनशिप है तो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, राइट? और ना ये फीलिंग आप देना चाह रहे किसी को कि मैं उसी वक्त कॉल करूंगी जब मुझे जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये चीज जो है ना, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी नेगेटिव। एंड मेरा एक दोस्त है, वो इसके अंदर ये है, सब इसका मजाक उड़ाते हैं। एवरीबडी नोज कि इसकी कॉल अगर कभी आए तो ऐसी कोई बात होगी कि इसको 4 पैसे चाहिए होंगे, इसको फलाना कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा, अदरवाइज ये आपको याद नहीं करेगा। लेकिन वैसे आपको मैंने कहा बहुत स्वीट है ये वो, आपसे तो वो, मैंने कहा भाईजान आप जरा बता दो कि किस वजह से कॉल कर लो, ताकि उस पर आओ, इस पर जरा टाइम वाइम नहीं करते, टाइम ज़ाया नहीं करते। अब वो एटीट्यूड इसलिए बन गया क्योंकि इसकी रेपुटेशन ये हो गई है ना। तो आप अगर फोकस करें दूसरे की नीड के ऊपर, right, and not just on कि मुझे क्या मिलेगा, this is extremely important. Get all the vital information, मतलब you make sure that you understand the problem or scenario ताकि आप बेस्ट हेल्प कर सकें। कभी क्या होता है जल्दबाजी में, नेटवर्किंग में हमने प्रॉब्लम समझा ही नहीं, आधी बात समझी और आगे चले गए उसको सॉल्व करने, और पता चला ओह भाई आप पूरा तो सुन लेते, राइट? बी विजिबल, नॉट पुशी। मतलब यू वांट टू बी एबल टू बी देयर कि भाई आप भी इंसान हैं। कोई अगर आपके साथ 20 30 40 मिनट तक बस बात कर रहा है, तो आप भी जरा कहें ठीक है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये भी बताएं कि ज़रा आप उसको थोड़ा सा करें, टाइम भी आपका अहम है, टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिस्पेक्ट द अदर्स टाइम एज वेल, व्हिच इज़ द लास्ट पॉइंट, एंड बी सिंसियर। मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता, अगर एक ही चीज़ आपको पकड़नी है, एक वर्चू अपनी ज़िंदगी में, वो आप पकड़ लें, इखलास। इखलास का आप पकड़ लें, एंड जस्ट प्रैक्टिस दैट, एंड वो चीज़ आपको इतना फ़ायदा देगी, इतना फ़ायदा देगी, आई कैन नॉट टेल यू। After networking meeting, you want to obviously jot the notes down, personal card, बिजनेस कार्ड होता है, फॉलो अप नोट कि भाई इसके ऊपर मुझे फॉलो अप क्या करना है। देखिए अमूमन क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, कॉन्टैक्ट आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट के बाद अगर आपका फॉलो अप नहीं होगा ना, तो फिर मसला होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे साथ भी है, मैं अपना एग्जाम्पल अगर बताऊँ, लेकिन खैर वो तो एक चीज़ था कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परसुइंग दैट नेटवर्क। पर जहाँ नेटवर्क होता है, मुझे कोई पता है कि बाद में इंशाल्लाह काम होगा, क्या होगा, कोई एक जगह होगी साथ। सो लेट अस मीट अप and connect, and we can connect immediately after ना। तो what I would do is business card होता था, मुझे पता है कि इनसे मैं रब्ता करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको वहीं के वहीं मैसेज कर देता, सैयद मुआज शाह फलाना फलाना लॉयर फ्रॉम दिस, ताकि उनको मैसेज में आ जाए कि इस बंदे ने मुझे वो कर दिया, फॉलो अप। और फॉलो अप से जो है फिर बात सेकंड लेवल पे आती है, विच बिकम्स अ मोर इंटेंस कॉन्टैक्ट। बिजनेस कार्ड वाला लेवल पे आप आएंगे तो बस ये ले बिजनेस कार्ड और बस भूल गए। उसके बाद एक मैसेज के कॉल आया, that changes the whole dynamic and it puts you in a different category. So follow up with new contacts when you achieve a goal they helped you attain, particularly जहाँ पे वो successful हो, आप उनको बताएं
कि आपकी वजह से मैं जो हूँ यहाँ पे मेरे सक्सेस क्या, आपकी जो गुफ्तगू थी, आपको पता है मैं हर वक्त ये करता हूँ, क्योंकि यकीन करें आप जब कोई चीज़ के सोल्यूशन पे जा रहे होते हैं, आपके जहन में कुछ बातें चल रही होती है कि यार इस बंदे ने मुझे ये कहा था दिस बार, इस बंदे ने मुझे ये चीज़ कही थी, एंड उस बेसिस पे आपको ये नया सोल्यूशन मिला, ठीक है, तो आप थैंकफुल भी होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप एक्नॉलेज करें। तो ज़रूर जो है इट्स वेरी अमेजिंग मैसेज। आज के दिन अगर आप किसी को याद आया, कोई कि यार इसकी अच्छी बात याद आई, उनको मैसेज कर दें कि सर यू हैव नो आइडिया, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली एवरीथिंग इज़ गुड, और उसके साथ साथ मैसेज कर दें सर आपके बारे में मैं सोच रहा था, कि मैडम मैं आपके बारे में सोच रही थी, आपने एक बार ये किया था, ये मेरे जहन में आज चला था, व्हेन यू नो इट्स बीन रियली हेल्पफुल फॉर मी, और जो भी आपका काम निकला इस वजह से आपके आपके एडवाइस से जो है मुझे याद है आपने 3 साल मुझे पहले दिया था, आज मैंने उसको वो किया एंड इट रियली हेल्प मी। आपको पता है वो मैसेज की क्या वैल्यू है? एक बड़े बड़े बंदे की भी आपको पता है वो नीचे आ जाता है, वो कहते हैं यार इससे कौन सी बात है यार, थैंक यू सो मच आपने मुझे याद किया, और उनको पता है कि आपने उनको याद किया अपने मुफाद के लिए नहीं, आपने याद किया उनकी वर्च्यू के लिए, कि उनकी वजह से आपको कुछ मिला। यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पैक्टफुल दैट इज, और आपकी रिलेशनशिप किस हद तक बढ़ सकती है। ये थैंक यू नोट्स इस तरह से देने का ना आपको बहुत एंड में बहुत फायदा आएगा। सो फॉलो थ्रू ऑन टाइमलाइंस, पर्टिकुलरली अगर कोई सेट होते हैं ना, वो कहते हैं यार नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीक आप कॉन्शियसली मिले। अगर वो कहते हैं सॉरी इस वीक वो हो गया, तो आप एक वो होता है एक नॉट एन इशू, लेट्स मीट अगेन, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना है इस लिहाज से। आप अगर ढीले रहेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। Are there any questions of this point before I move on to the next session? And we're actually going to have to close it off here in a little bit because I'm towards, I think ये मेरी slides ही almost खत्म होने वाली है, ये last section है mentoring का. So mentoring is a level of this peer connectivity, but it is of course a mentoring relationship जहाँ पे फाहिमा साहिबा ने भी मेंशन किया था कि जो सीनियर्स थे जो पोस्ट में थे वो पे आगे चले गए, तो इस तरह से भी है। वो एक डिस्कशन भी था कि मेंशन हुआ था कि सिस्टम के अंदर आपकी जुडिशरी के अंदर इस तरह भी होता है कि वो किसी के साथ काम करते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन ही उसके अंदर है। पर्टिकुलरली मेंटरिंग के अंदर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन द मेंटर एंड द मेंटी, right? It's not just a random collection of people, but a specific person who helps and mentors you. अच्छा, mentors is generally a high-ranking employee. आपके seniors होंगे जिसके पास experience है, knowledge है, committed है, guidance development, and support the mentees career development. लेकिन mentor आपके इसके बाहर भी हो सकता है। For example, I don't know, अगर मैं सवाल पूछूं यहाँ पे, मैं खोलता हूँ सबके लिए, आप लोगों के अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो जुडिशरी में है, एक तो आपका एक मेंटोर है। डू यू हैव अ मेंटोर जो आपके कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के जानने वाले में कोई रिटायर्ड जज, कोई इस तरह से कोई है? इफ इज, कैन पीपल, कैन एनीवन शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर मेंटोर एंड हु दे आर अ लिटिल बिट? मेंटर्स जो है किसी के बेसिकली सवाल यह है कि आपका कोई मेंटोर अगर है तो उनके बारे में जरा शेयर कर लें, एंड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर रिलेशनशिप. Someone wants to say something? जी जी हमारे गुलाम बोल बैरिस्टर जी। खुर्शीद ए आशमी थे, एक्स प्रिंसिपल है असम लॉ कॉलेज के। आई हैव वर्क विद हाँ हिम, तो उसकी उनकी कुछ जो उनकी बहुत सारी गाइडेंस उनसे मिलती थी, वो बताते भी थे, जो कि एकेडमिकली एकेडमिक थी, कोई प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी उसकी गाइडेंस मिली थी। very good, very good. That's a very good example. Thank you, Ghulam Saab. In fact, Professor Khurshid, some people know, and it could be someone like that. जैसे मैं अगर आपको personally बताऊं, one of the mentors for me is Justice Wajiuddin. And Justice Wajiuddin is someone that, आप सब जानते भी हैं Justice Wajiuddin को, because of the politics of this country and the lawyers movement. लेकिन Justice Wajiuddin के साथ मतलब I go and sit in his home, in his lawn, चाय के वक्फे के ऊपर and all that. एक और भी होते थे बैरिस्टर समीन खान साहब, उनका इंतकाल हो गया 3-4 साल 5 साल पहले। वो भी एक थे हमारे, एंड आप समझेंगे कि किस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। And I actually used to meet a lot of these people in my youth. I don't know अगर यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं कि कोई खालिद इशाक साहब को भी अगर जानते हैं, तो वो बड़ा एक वो थे एक ज़माने में, अबरार हसन साहब, जो हमारे सीनियर वकील हैं, उनके साथ भी उनके घर, बिकॉज वो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं। मतलब दीज आर लिविंग लेजेंड्स, और इनसे आप
टाइम स्पेंड करें, जाएं, सुने, आपको क्या क्या गेन नहीं होता है। जैसे गुलाम साहब ने मेंशन किया ना, ये बहुत मतलब अभी भी कुछ हमारे साथ जो है जिंदा है, एंड दे आर वेरी अप्रोचेबल। आप यकीन करें, उनके अंदर कोई वो प्राइड नहीं है, कोई नहीं कि इतने बड़े जज हैं, हम इनसे कैसे जाके मिले, फलाना चार्ट ऐसे होते हैं। माशाल्लाह, लॉट ऑफ देम दे रियली ओपन, क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम है। व्हाई नॉट गो गेट सम एडवाइस फ्रॉम देम। And Justice Wajuddin has been extremely been an amazing person for me. Personally, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये जुडिशरी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको करें। एंड मैं भी इंकरेज करूंगा, मैं भी शायद हम एक निश्चित उनके साथ कर लें, सब आपको के साथ ही मोर देन वेलकम, अपने लॉन में आपको चाय के लिए बुला भी सकें। तो इट्स वन थिंग कि आपका रीच आउट होना चाहिए इसमें। डू यू हैव दैट लेवल ऑफ दैट? सो एनीवन एल्स वांट टू शेयर सम सॉर्ट ऑफ मेंटोर? कोई मेंटोर है आपका, पर्टिकुलरली अगर जुडिशरी में है, जुडिशरी के बाहर भी है, दैट्स फाइन टू। पार्टिसिपेंट जरा आप शेयर तो क्या, अगर नहीं है मेंटोर तो ये भी बता दें कि मेंटोर नहीं है। मैडम अनम, मैडम अलमास, फाइमा, ओके, फाइमा वांट्स टू शेयर, प्लीज मैडम। जी, मैंने लास्ट टाइम पे भी इसी सेशन के दौरान जो है वो शेयर किया था कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जैसा है खालिद राना टीपू साहब। तो मैं अक्सर अपनी जो फैमिली सिबलिंग्स हैं उनको भी उनकी मिसाल इस तरह से दिया करती हूँ कि वो इतना कंसाइज और इतना प्रिसाइज बोलते हैं, और उनका एक एक जो जुमला होता है वो काइंड ऑफ कोट होता है। और मैं कहती हूँ अगर आप उस कोट को सुनते हैं उसके बाद आप में इंस्पिरेशन भी आती है, उसके बाद उसमें आप में मोटिवेशंस भी आती हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। और वो अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कभी क्रिटिसिज्म लगती ही नहीं है, वो करते राइट। ही नहीं, इतना पॉजिटिव बोलते हैं। तो मैंने उनको बचपन से देखा है, तो मैं उनको एज अ मेंटोर ही ट्रीट करती हूँ। मैं अभी भी चाहती हूँ, हाल गो कि हमारी इतनी ज्यादा मुलाकात नहीं होती है, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि अगर वो मुझे किसी महफिल में, कहीं हमारे यहाँ पार्टी में, कहीं उनके यहाँ पार्टी में, कहीं मुलाकात हो जाए, वो कुछ भी कह दें तो मैं उसको अपने साथ इस तरह से बांध लूं कि ये मेरे लिए एक हिदायत है और मैं इसके ऊपर अमल करूंगी तो डेफिनेटली कल को मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट होगा। इतना राइट। प्रिसाइज और इतना बेहतरीन बोलते हैं। खैर वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब है, राइट। लेकिन उसके वो मेरे मेंटोर हैं। लेकिन उसके अलावा जो है और भी लाइफ में चलते फिरते कभी कोई इंसान इतना अच्छा कह जाता है, कभी किसी की बात इतनी अच्छी लग जाती है, वो अगर वो काइंड ऑफ मेंटोर ना भी हो हमारे लिए, फिर भी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जरूर बन जाती है। एब्सोल्युटली। अभी हमारे सीनियर खालिद शानी साहब, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड हम्म। सेशन साहब। दैट्स अब राइट। उनका इंसिडेंट नॉर्मली लोगों को मालूम भी है, लेकिन उसके बाद भी जब हम उनसे मिलते हैं, जब उनसे बातें करते हैं, तो मैं कहती हूँ हाउ स्ट्रॉन्ग दैट मैन इज, कि माशाल्लाह से वो बंदा बिल्कुल अपने चेहरे पे ऐसी कोई दुख, ऐसी कोई तकलीफ आने ही नहीं देते, और इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, हर किसी से इतना अच्छा सा मिलना, और ये वो। तो इस हम्म। तरह की इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी उनकी भी है माशाल्लाह। सो इस तरह नंबर ऑफ पर्सनालिटीज आपको मिलती हैं। हाई कोर्ट में जब हम आए थे पहली बार ऑनरेबल जस्टिस फैसल अरब साहब को देखा था, तो सोचा था कि या हाँ काश के फैसल मैं ऐसे रखा। ही बन जाऊं, काश के मैं यही बन जाऊं। इसी हम्म। तरह से मतलब वो डिफरेंट पर्सनालिटीज को देखना, उनके कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी चीज अच्छी लगती थी। एब्सोल्युटली। ऑनरेबल जाद अली शाह साहब, ऐसा लगता था ऐसा बंदा दबंग होना चाहिए जी, बात करे तो फिर एकदम से मतलब दूसरा सुनने वाला जो है वो उससे इंस्पिरेशन भी ले और थोड़ा सा डर भी जाए, सहम भी जाए। और जी इस जी। तरह से मतलब डिफरेंट हमारे पास ऑनरेबल जस्टिस शकील अहमद अब्बासी साहब हैं। मतलब हाँ, वो ऑफ तो कोर्स, ऑफ काश के कोर्स। मुनीब अख्तर साहब, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये इस हम्म। तरह के लोग थे कि दिल करता था इनकी चीजें जो हैं वो, या इनके इनकी जो खूबियां हैं वो सारी हम अपने अंदर इस तरह से एब्जॉर्ब करें कि हम भी कल को ऐसे ही हो जाएं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक आध बंदा, लेकिन आपकी ट्रू। थ्रू आउट लाइफ के अंदर डिफरेंट लोग, आपके पेरेंट्स समेत, लाइक वो मैं उस दिन भी मैडम जो मैडम मारिया तैमूर साहब से बात कर रही थी, तो उनको भी हम्म। मैं यही कह रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स से स्टार्ट होती है कहानी। हमारे पेरेंट्स ही हमें कहीं ना कहीं पे इतना राइट कर देते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी से लेकर ऑन वर्ड जो आपको लाइफ में लोग मिलते जाते हैं, तो वो काइंड ऑफ आपके मेंटोर होते ही हैं, या कहीं हम्म। ना कहीं इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज वो होते जरूर हैं आपके लिए। हाँ, लेकिन एक बेसिक बंदा जिसके मैं कहूँ कि हाँ मैं इनके कोट भी, उनके अल्फाज भी मुझे कोट लगते हैं, वो खालिद राना टीपू साहब हैं। तो इस तरह से हम्म। मतलब हर किसी का कोई ना कोई होता होगा, ये अलग बात है कोई शेयर करे कोई ना करे। राइट।
नहीं, ये चीज़ है। very good, Madam Faima. Thank you so much for that share on that. कि एक से ज़्यादा you know, and I hope कि एक जो आपने जो I think शुरू में जो mention किया था वो almost एक personal one to one था. And mentoring का definitely inspiration तो बहुत लोग होंगे, लेकिन जो आपने एक तो I think शुरू में जो mention किए थे, मुझे इस तरह लगा था कि आपके साथ एक deeper इनका interaction है उनके साथ, and that results in much more learning, much more intensive learning. Of course, inspiration तो आपने जो नाम दिए, absolutely. एंड यू नो इस तरह भी हमारे साथ भी दो तीन इस तरह से वाक़या है, जैसे आपने जो अकील अब्बासी साहब हैं तो उनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा इस बेसिस पे कभी जब हो जाता है तो डेफिनेटली वेरी इंस्पायरिंग। आबिद ज़ुबैरी एज वेल, जो हैं यहाँ पे बहुत मशहूर एक वकील। सो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग, लेकिन पर्टिकुलरली मैं उस पे हूँ कि मेंटरिंग के अंदर लाइक यू मेंशन दोस फर्स्ट टू जेंटलमैन, you know they had a very intense role जिसके अंदर आपकी और intensive learning उनके साथ होती है. So thank you so much for that share, but we'll go ahead and move forward now. Okay, mentoring functions, of course, career functions. They have the aspects of the relationship that enhance career advancement, such as exposure, visibility, coaching, protection, challenging assignments, and career strategizing. So there's a lot of elements. एक तो उनका exposure, you know, next level पे है compared to you. जहाँ हमारे साथ कोई सीनियर का ऑब्वियसली होता है, मेंटर इज़ मच मोर सीनियर इन दैट, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, विजिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ मुझे पता है कि यू नो मेरा तो कुछ रहा है पर्टिकुलरली समीन खान साहब के साथ, कि विजिबिलिटी उनकी माशाल्लाह बहुत थी। तो शुरू में जब मैं आया था, उससे पहले भी जब मैं आते जाते रहता था पाकिस्तान, तो थ्रू दैट आई वाज एबल टू काइंड ऑफ कनेक्ट विद अदर पीपल बिकॉज ऑफ हिज विजिबिलिटी। कोचिंग ऑफ कोर्स, प्रोटेक्शन ये बहुत अहम है ऑब्वियसली, हमारे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से और दूसरे लोग भी होते हैं जो चैलेंज करते हैं, तो दैट्स समथिंग दैट टू हैव दैट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द सीनियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड की। चैलेंजिंग असाइनमेंट्स एंड करियर स्ट्रेटजाइजिंग, तो वो भी आपको ज़रा चैलेंज करते हैं आपका मेंटोर कि ठीक है आप इस तरफ आना चाह रहे हैं, तो मैं ज़रा आपको बताऊँ ये है, आप ये सिनेरियो में क्या करेंगे एंड ये इस तरह से करें। एंड करियर स्ट्रेटजाइजिंग, क्योंकि वो वही स्टेप्स गुजरे जो आप गुजर रही हैं कि गुजर रहे हैं, जो अकॉम्प्लिश क्या करना चाह रहे हैं। सो दे नो एग्जैक्टली क्या करना है, कि आपकी प्रमोशन रिपोर्ट क्या है, क्या ट्रेनिंग्स करनी चाहिए ताकि आपका इन्हेंस हो आपकी वो प्रमोशन लेवल पे। सो दैट्स दैट। साइकोलॉजिकल फंक्शन, ऑफ कोर्स द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप दैट एनहांस अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी, कि आपके साथ अगर कोई इस तरह से बंदा जुड़ा हुआ है मेंटरशिप में, तो आपकी एक एनहांसमेंट होती है अपनी कॉम्पिटेंसी में, कि भाई हाँ मुझे आई हैव सम गुड बैकिंग, गुड लर्निंग, सो आई नो दिस, मैंने इनसे ये सीखा है ये, एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल एक्नॉलेज जज एंड लॉयर, तो मैं भी इस चीज़ को आप लेके, तो आपकी समझ से आपकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होती है, एंड प्लस यू हैव मोर कॉन्फिडेंट इन मेकिंग दोज डिसीजंस। आइडेंटिटी एक बन जाती है ऑब्वियसली जिसके साथ आप एसोसिएटेड होते हैं, तो इसलिए वो कहते भी हैं कि अगर आपने गलत लोगों के साथ एसोसिएट किया तो गिल्टी बाय एसोसिएशन, राइट। आप लोगों ने भी अपने कोर्ट में देखा होगा बहुत दफ़ा, कोई मुजरिम आता है एंड वो इनोसेंट वैसे होता है, लेकिन उसकी गिल्टी बाय एसोसिएशन पे हो जाता है, और आपको मतलब एक तो एडवाइस तो उसको देनी होती है पर्टिकुलरली जो नौजवान है, कि देखो भाई यू नो एक तो इस क्राइम के अंदर ये है, मैं आपको लोअर सेंटेंसिंग आज दे रही हूँ क्योंकि एक लॉ के अंदर मुझे देना है, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि इफ़ यू डू नॉट एसोसिएट विद गुड पीपल, यू कीप एसोसिएटिंग विद दीज नेगेटिव क्रिमिनल्स, यू आर गोइंग टू एंड अप इन द सेम वे। सो दिस इज जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट, राइट, टेक इट इन स्ट्राइड एंड गेट बेटर। तो ये आपकी आइडेंटिटी जुड़ जाती है एक एसोसिएशन के साथ। You're associated with good people, izzatdar people, people successful, guess what? They're going to associate with that as well. Effectiveness in a professional role. Like I said, senior judges help you professionally in how to exceed in your own role because they were there, they did the same thing, so they understand the challenges, and you become more effective in your professional role by understanding how to go through it because they've been through it. Role modeling, obviously, counseling as well, friendship, जैसे आप अभी मैडम फाइमा ने शेयर किया कि फ्रेंडशिप और दोस्ती और वो सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स पर्सनल फीडबैक। अब वो चीज़ को इंसान बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोई उसको करेक्शन करे, लेकिन जब मेंटर की तरफ से आता है तो वो एक स्पेशल चीज़ होती है कि वो चाहता है आपकी बेहतरी के लिए। तो आपको पता है कि दिस इंसान इज़ नॉट जस्ट सेइंग इट जस्ट फॉर दैट, बट इज सेइंग इट बिकॉज ही वांट्स और शी वांट्स मी टू गेट बेटर। सो दैट्स आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग। So the benefits of mentoring, basically mentees have more promotions, higher incomes, higher career satisfaction, higher job satisfaction, and less likely to express an interest to leave.
ऑब्वियसली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपके ऊपर सीनियर acts as kind of a mentor in certain levels, and they have to encourage you, right? If they constantly are pushing you down, constantly आपको criticize कर रहे हैं, तो आपका भी मज़ा नहीं होगा हमारे यहाँ। और आप भी ये अगर इस तरीके से अपने लोअर स्टाफ के साथ करें, तो आपके साथ भी कोई काम करने के लिए वो नहीं होगा। So you have to take things and people along. So the benefits of mentoring is to kind of have this idea of, uplifting others and uplifting yourself. Mentors are able to hone their interpersonal skills, gain insight into the ideas and perceptions, increase their awareness through their experiences. Mentoring programs can boost the performance and advancement and the rates of minorities and women. So this is also important because when you have mentors who are with minorities and of women, they really help others in their pathway. So for example, as you know, Justice Rana Bhagwan Das, he was amazing person. Had the chance to meet him when he was alive as a kid. मैं बचपन में था, लेकिन obviously, there was that element. I really felt like a spiritual side of him was always present. And those of you who may know Rana Bhagwan Das, in Sindh, I'm not too sure if those here, I'm pretty sure you've definitely heard about him if you haven't met him. A really amazing man. And आप यकीन करें, इनकी जो personality थी, obviously, was very helpful for our Hindu fellow citizens, because it showed them that how successful, how respected a judge can reach that stature. And I think that's something that we rates of women and minorities. Abhi hamare Aisha Malik sahiba, how inspiring she must be for a lot of women in the judiciary now, क्योंकि वो glass ceiling टूट गई ना। वो दैट इज समथिंग। अब आप लोग सारी औरतें अब कह सकती है कि हाँ ये वो है। आप यकीन करें, मैं अमेरिका में था जब ये ओबामा का इलेक्शन था, और ओबामा जब वाइट हाउस में उसने जीता, तो अफ्रीकन अमेरिकन जो पूरे अमेरिका में थे ना, आप यकीन करें, स्पेशली जो बुड्ढे थे, रोने बैठ गए। मैंने कहा खैरियत क्या हुआ? उन्होंने कहा हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था, अब अंदाज़ा लगाएं, हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि आज जो है एक काला हमारे जैसा व्हाइट हाउस में जाके बैठे। तो आप सोच नहीं सकते जो वुमेन ब्रेक ब्रेयर्स कहते हैं वो किस किस्म की इंस्पिरेशन होती है। सो मेंटर्स आर एबल टू डू दैट, particularly if they're in minorities and women, for that because they really boost the confidence in that। एक तो वैसी फीमेल के challenges है कॉन्फिडेंस में, जैसे वो अभी आपके अर्लियर सेशंस में डिस्कशन था। अब आप सोचिए, आप माइनॉरिटी हैं और वुमेन भी है, तो आपके तो एक डबल चैलेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। तो दैट्स वे माइनॉरिटीज के भी there is that element in there as well. Now, types of mentoring relationships: formal mentors or relationships officially designed by the institution through a formalized mentoring process. जैसे अभी suggest हुआ था earlier कि कोई एक आपका सीनियर साथ आता है, उसके अंदर आप कुछ अरसे चलते हैं, फिर आपको वो अपने तौर पे छोड़ देता है। Informal or peer relationships develop spontaneously and without a specific plan. सबसे वो दोस्त और जो बनते हैं आपके साथी, वो कभी अनप्लान्ड ही होता है। एंड दैट्स समथिंग दैट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जो एक्चुअली होता है जब आप एक प्लान करते हैं, नहीं मैं इसके साथ एक वो रिलेशनशिप और इसके साथ मैं एक कोई कॉन्टैक्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो कभी वो इतना वो नहीं होता जितना आपका ऐसे ही चलते हो जाता है। Colleague, peers, not to say that you shouldn't have focus. Now, if you want to have a focus, have a focus and target रखें कि मैं इनके साथ एक मतलब connection बनाना चाह रही हूँ। So that's something that I think you should have the target for, but उसके अंदर ज़्यादा energy waste नहीं करनी चाहिए अगर वो develop नहीं हो रहा। ठीक है, तो reach out करना कोई वो बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, connect करने की कोशिश करें, लेकिन अपना time मत ज़ाया करें अगर आप connect नहीं हो पा रहे, क्योंकि in order for two people to connect, both their connectors must be open. Remember that. अगर एक का खुला दूसरा का नहीं है, never gonna work. Collegial peers tend to trust more and share more, right? So college level के जो आपके peers हैं, आपने साथ पढ़ा, cadet college गए, DA college, whatever the different universities and colleges they went to, वहाँ से obviously आपका trust and share more, इसी alumni network के साथ आपका एक होना चाहिए। नहीं है alumni network, आप बनाएं, आप अपने बनाएं उसमें। So that's something that you should be a part of in your previous learning experience. 4 stages of mentoring relationship: orientation, which is the initial stage, which is the relationship stage at that point, getting to understand कि आप कहाँ खड़े हुए, आपको कहाँ मदद चाहिए, कहाँ वो आपको हेल्प कर सकता है, किस स्टाइल में हेल्प कर सकता है, कितनी दफ़ा मिल सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं। These type of things are important to building out in the orientation stage. आपके goals क्या हैं, target क्या achieve करना चाह रहे हैं, all this has to be locked down in that stage. Cultivation,
अब प्रोसेस आता है, ठीक है पहले आप ये करें, फिर वो करें, फिर एक गाइडेंस फ्रेमवर्क आता है। तो दिस बिकेम ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि अब प्रॉब्लम भी समझ लिया, क्या आप गेन करना चाह रही हैं, क्या गेन करना चाह रहे हैं इसमें से, वो आइडेंटिफाई होते हुए हमने स्टेप्स बना लिए। स्टेप्स के अंदर ये कल्टिवेशन है, ये स्टेप करेंगे तो ये ग्रोथ होगा, ये स्टेप करेंगे तो ये ग्रोथ होगा, एंड सो फॉर्थ। आखिर में जब आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि आपने अपने गोल अकॉम्प्लिश कर लिया मेंटर से, तो मेंटर से आप एक तौर पे ऑफिशियल तौर पे एक सेपरेशन होता है कि भाई अब एक अलग-की इन द सेंस कि अब आपने सारी चीज़ें जो मेंटर से सीखनी थी वो सीख ली, अब आप इम्प्लीमेंट करने में जा रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट। एक तो उसके पास कल्टिवेशन स्टेज में ये भी होता है कि वो ओवरव्यू कर रहा होता है कि देख लें आप इम्प्लीमेंट करो, ज़रा देखते क्या होता है। एंड वो जब ओवरव्यू होता है तो उसके अंदर आपकी इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती उस वक्त। इंडिपेंडेंस इसके अंदर वो खौफ, फियर, सब कुछ आपको अकेले पाँव पे खड़ा होना है। तो वो चीज़ जो है ट्रू सेपरेशन। उसके बाद रीडेफिनेशन, redefining the relationship between you and the mentor, because now it's a dosti. Right now it's like that आप साथ एक हो गए, आप उसका एक relationship उस level है। How to find a mentor, clarify your clear goals and coaching needs, identify potential candidates, आप specifically निकालें कौन कौन आपके साथ हो सकता है। अगर आपके पास mentor नहीं है आप identify करें, involve your boss and network with others. So these are things that you can help you find a mentor and clarify your goals and coaching needs. Now, of course, there's limitations in mentoring. Mentors may not have adequate time to devote to a mentee. जैसे मैडम ने मेंशन किया, माशाल्लाह बहुत बड़े 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 नाम, लेकिन उनके साथ टाइम नहीं होता। So that's something that becomes, clearly mentoring के अंदर कुछ हद तक जो कर सकते हैं करते हैं। Mentoring may result in mismatch of resources or a mismatch between mentor and mentee goals, perception, and personality. ये भी अहम है। अगर mentor आपके बारे में कुछ समझता है और आप अपने बारे में कुछ और समझते हैं तो ये इशू होगा कि आपके गोल्स कुछ और हैं, उनके गोल्स कुछ और हैं। वो समझ रहे हैं आप इस तरफ जाना चाह रही हैं और उल्टा जो है आप उस तरफ जाना चाह रही हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन परसेप्शंस एंड पर्सनालिटी। ये बहुत क्लियर हो, ओरिएंटेशन स्टेज में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू होप टू अचीव। Mentoring will fail if the environment is not supported. Of course, this environment means how frequently meeting, environment किस तरह से जहाँ मिल रहे हैं, and all that other stuff. That's important. There's a lack of sufficient female and minority role models. That's of course an issue within the limitations of mentoring. Guidelines for mentees: respect the mentor's time and manage expectations. Be mindful of the mentor's credibility and reputation. देखिए अगर mentor आपको ले भी रहा है ना, आप उनका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा गिल्टी बाय एसोसिएशन, आप हो गए हैं इसमें से। आपकी जो हरकत होगी उनके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ कि आप अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे इस लिहाज से, और तरह से मेंटर का ख्याल करते हुए चलना है। आप फारूक नसीम के साथ एसोसिएटेड है तो ये आप आबिद ज़ुबैरी के साथ जो लॉयर्स में हमारे, तो इस तरीके से हम एक बड़ा ख्याल करना होता है क्योंकि वो कहते हैं यार ये तो आपको एसोसिएट ये करना है, तो ये चीज़ जो है बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। बी रियलिस्टिक एंड बी सेलेक्टिव। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। कोई ऐसे हवा में गोल जो है बड़े इतने सारे रखना फॉर समवन अदर देन यू, वो भी मेंटर इज समथिंग अनरियलिस्टिक, राइट। एंड बी सेलेक्टिव, जहाँ पे आपकी गोल सेटिंग भी है उसमें भी सिलेक्टिव हो, और जहाँ मेंटरिंग में भी है वहाँ पे भी अगर आपको सेंस नहीं कर रहा देन लीव। There's no need for you कि आप उस सिचुएशन में फीलिंग नेगेटिव कि आप कंटिन्यू करें। मेक मेंटरिंग अ टू वे स्ट्रीट। अच्छा ये बड़ा अहम है, मेंटरिंग का ये लोग समझते हैं कि बस मुझे ही मिल रहा है। नहीं, मेंटरिंग को थोड़ा सा एक्साइटिंग करने के लिए आप चैलेंजिंग सवाल पूछें, आप काउंटर करें समझने की खातिर, ये नहीं कि बहस करने की खातिर। यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा कि मुनाजरात, राइट, बट इन अ वे इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। इनफैक्ट जो डायलॉग और जो डिबेट था, एक ओरिजिनल जो ग्रीक लोग इस्तेमाल करते थे डायलॉग जिसको कहते थे, वो सीखने के लिए था। ये नहीं कि मैं इसको जिताऊं और मैं जिताऊं उसको हराने में। That wasn't the purpose of debate. The debate was to learn something new. And that's something unfortunately that a lot of us have forgotten. Demonstrate your trustworthiness, ये भी बहुत अहम है। देखिए ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बहुत अहम है अपने मेंटर के साथ, कि वो ट्रस्ट करे कि भाई आप टाइम पे आएंगे, ये होगा, फलानी चीज़ होगा, अगर वो बात होगी कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात होगी तो कॉन्फिडेंस में रहेगी एंड एक्सेट्रा। Be willing to accept gracefully all the feedback mentors will provide you, and seek out multiple mentors. Don't be stuck with just one mentor and that's it. Peer and senior and reporting line networking. Of course, you have organizational change capacity, which is the ultimate outcome. आप चाहें कि अपने organizational level पे ये change आए तो ये ultimate outcome है। जहाँ पे roots basis पे आपका mentoring का वो एक होता है कि time, trust and truth. Then this baseline is communication, resource, and problem solving.
And then, of course, the next stage, which addresses the good practice and challenges, which helps you in the strategies. तो एक तो आपको बिल्कुल जड़ जो है वो होने चाहिए टाइम, ट्रस्ट एंड ट्रूथ. फिर बेस लाइन आपका कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके नॉर्मल उसमें. फिर स्ट्रैटेजीज के लेवल पे गुड प्रैक्टिसेस. राइट, दिस इज समथिंग दैट गुड प्रैक्टिस इज समथिंग ताकि आने वाले उस सिनारियो में ना बने, प्रॉब्लम से होने से पहले. Building an infrastructure, which is obviously something that's immediate outcomes, but organizational change and capacity is the ultimate outcome. Because हम चाहने कि इदारे ही खुद जो है mentally इस चीज़ को अपनाएं and change. And that's something that is obviously going to have the ultimate outcome. Networking tactics, in-person and electronic interaction, create a physical and virtual space to operate, identification of resources and infrastructure for supporting the space. So trust, जैसे मैंने discuss किया, networks are successful if they create a trusting environment for the participants. जहाँ वो पता चला कि आप भरोसे वाले नहीं हैं, it destroys the relationship. So trust, extremely, extremely, extremely important. They feel safe saying that what they say, what they think, and having an honest discussion with other network members. Now, feel safe. ये trust इस तरह है ताकि आप खुला बात करें. आपको ये शक है कि यार ये बात आगे जाके किसी और को कह दे, then that's not the person you need to be with, right? So you have to keep that. Time, networks are successful because they allow sufficient time for peer networking activities to develop and mature. That's extremely important. ये जो networking dinners होते हैं, अभी इफ्तार होंगे, SM Law College का एक reference आया, तो शायद उधर जो है वो एक इफ्तार होता है, दूसरी जगह भी इफ्तार होते हैं. ये these are events and peer networking activities that we need to develop and mature and engage in. Most coalitions repeatedly go through their 3 primary stages of forming, continuing, and making the coalition a regular part of the organizational structure. Concern. Truth, networks are successful if they're transparent in their operation. Extremely important. आपका network अगर बहुत exclusive और ख़ास हो, इसके अंदर कुछ लोगों को allow है, दूसरे लोगों को नहीं है, and it gets a little complex. So try to go for those that are more transparent. Also, if they gather and offer ready access to accurate data about their operations and impact. That's important. Now the assignment, and this is the last slide, is a 45-minute assignment, and we're at the end of our class. In fact, perfect timing. It's 5:30. Identify at least 3 judicial networks and write their names. Okay? 3 judicial networks and write their names. And write a concept note of a judicial network by giving the following details: name of the network, purpose of the network, and functions of the network. Now your network के इदारे जो हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं. For example, there's, I don't know if you know, globally यहाँ पे jurists के बहुत सारे networks हैं. उसकी भी member आप बन सकते हैं, free. You don't have to even pay any money. And आपके इतने सारे links and contacts and emails और email list में आ जाते हैं और आपके opportunities और connections जो है एकदम से बढ़ जाते हैं. So one of the things I'm going to give you is one of the networks that you should be on. That is a very broader professional network. और उसके अंदर जो है वो आपका होगा LinkedIn. And I want each one of you, as an assignment, as part of this assignment, to have a LinkedIn account. And if you have a LinkedIn account already, to network with everybody in this group. Okay, so that needs to be done. That's going to be part of this assignment कि आप LinkedIn के अपनी एक प्रोफाइल बनाएं. अगर नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई है तो लिंक करें, ठीक है. और I want everybody on the WhatsApp group के अपने जो प्रोफाइल लिंक्स हैं वहाँ शेयर कर लें, और वहाँ पे शेयर करने के बाद कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें एक दूसरे को. हमारा अपना एक जुडिशल नेटवर्क हो जाए. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम दूसरों को भी अपने नेटवर्क में ऐड करें. That's how things are going to go. So let us do that. That is also part of this assignment. And Furqan, if we can do a follow-up on this, I want to make sure that we have everybody who is on board, that they are connected, so that we can help each other achieve their goals. So let's put that also as a part of this, and that could be one of the 3 judicial networks. बाकी 2 फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर लें अपने असाइनमेंट में. LinkedIn लेकिन आप एक उसमें डाल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा. Furqan, from my side, that's it. I don't know if there's anybody else who would like to share anything, but I don't know. Is कोई सवाल है किसी का before we end the session? I think असर का नाम नमाज का टाइम भी हो रहा है, and we're going to have to do that. If there's no questions, we're going to go ahead and end this session. Inshallah, hopefully by next class, we'll all be connected at least on LinkedIn. And please do share 2 other networks that you may be a member of.
and write a little bit about that. ठीक है? Thank you so much. आपका assignment भी upload हो गया, उसके ऊपर आप upload डाल दें accordingly as you do, and look to see you tomorrow, and hopefully Madam Maria will take over and then approach you and go through the next session. Thank you so much. So thank you so very much, Moss. Oh, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया. Let's end the session. कल same timing और same place मुलाकात ठीक. होती है. Thank you. Allah Oh, Hafiz. Take care.